which we use for testing of unsaturated soil mechanics, because normally the triaxial test apparatus which we use, the conventional triaxial test apparatus which we use for the saturated soil mechanics, we cannot use that apparatus for the unsaturated soil mechanics testing. The main reason is some parameters which I will tell you in the later slides, and then I will tell you about the current research which is ongoing on this in this field, and I will also share with you some of my experimental results, which I have already done on unsaturated soil mechanics. So let's start with the introduction. As you already know that soil mechanics is a very versatile field, and normally it is said that soil mechanics is an arts more than science. So there are two main areas of soil mechanics. One is saturated soil mechanics and saturated soil mechanics. In saturated soil mechanics, we take the two phases, only water and soil solids. But in unsaturated soil mechanics, there is one more phase is present, and that is the air phase. So the presence of the air phase in the soil, it makes the soil as unsaturated soils. So normally, the natural silts and the clays or the sand or the gravels, they are consisted of saturated soils. But the natural desiccated silt, clays, transported soils, or the residual soils, or the soils which we manually compact, they are composed of the unsaturated soils. The volume change in the saturated soil is only due to the presence of the water. As I told you, there are only two mediums, one is the soil and then one is the water. So the volume change in the saturated soils is due to the presence of the water, whereas in case of unsaturated soils, the volume change is not only because of the water but also due to the presence of the air. So you can say that it's because the degree of saturation in case of the saturated soil is 100%, because all the voids in the soils, they are filled completely with the water, whereas in case of unsaturated soils, you can see that the degree of saturation is less than 100%. So you can say that the voids between the soil particles, they are partially filled with the air and partially filled with the water. No, the main thing, the effective stress in case of unsaturated soils, because of the presence of only one medium, that is the water or pore water, the effective stress equation, it can be written like this. It consists of total stress minus pore water pressure. Whereas in case of unsaturated soil, because of the presence of two phases, that is, one is the pore water pressure and one is the pore air pressure, the effective stress equation, it can be written as this one. So there are two parameters. One is the total stress, and or you can say it in case of unsaturated soil, it is the net stress, and one is the degree of suction stress. So suction stress is a combination of degree of saturation and metric suction. So this UA minus UW is a metric suction. So I will tell you in the later slide about the metric suction in more details. So this is basics of the soil mechanics, which consists of the saturated and unsaturated soil mechanics. So this is phases of the unsaturated soil. As already told you that unsaturated soil, there consists of the main three phases. One is the soil solids, the particles of the soil itself, the water and the air. So you can see, if we take a cube or a part of the soil, it normally consists of the solid particles, then it has some water in it, and then some air voids in it. So you can also take uh, you can say that 2D portion of a soil. Then you can see that some particles, they are joining together, and there is water in between the particles, and there is also air in between the particles. And if you closely see that, there is written the contractile skin, the air and the water interface. So the air and the water interface, this layer between the soil particles and the water, it makes the um, thin or very thin skin layer,
skim type layer, that layer is also called as the matrix suction. So matrix suction is a basically, you can say, it's a difference between the pore air and pore water particles, and it lies normally at the surface of the soil particles. Okay, maybe you have heard the name of the Fredland. Fredland is a very famous researcher in field of soil mechanics. He has performed a lot of research in both saturated and unsaturated soil mechanics. So he, according to the Fredland, the soil mechanics related problems can be broadly categorized into three major areas. So he has categorized soil mechanics in three areas. Its performance under seepage condition, like the performance of the soil under seepage condition, the shear strength of the soil, and the volume change behavior, which also includes the soil deformation. So these three things make it obvious that the performance of the soil is mainly based, or we relate the soil performance according to these three things: its performance under the seepage condition, the shear strength, and the volume change behavior. And these are the major criteria. Okay, I know I will tell you something about the state variables. Maybe some of you already know about the state variables, but I will tell you about some definition of the state variables. What are the state variables? State variables are the known material variables. These are required for the characterization of a material system. Okay, in case of saturated soils, the state variables are net stress, shear stress, or the void ratio. Okay, the critical state and the normally consolidated lines in P, Q, E space, they can be drawn as this one. So you can see that this line is a critical straight line, and the blue line, they are uh, and okay, this black line is a critical straight line, and these curved lines, they are the boundary surface. So uh, and this black line, which is between the p prime, or the net stress, and the void ratio, is the normally consolidated line. So these basically, these three dimensional system, or you can say the three dimensional axis, they makes the something related to the critical soil mechanics. As Dr. Mubashir already told you that your next lecture will be related to the critical soil mechanics. So maybe the next presenter, he will tell you more about critical soil mechanics in some more details. But the main, you can say, the basic concept of the critical soil mechanics is based on the three variables, or three state variables, that is the net stress, the shear stress, and the void ratio. But in case of unsaturated soil mechanics, the state variables are four. What are the state variables? One is the net stress, one is the shear stress, one is the um, void ratio, or um, water content, or degree of saturation, and the last, or the main thing, is the matrix suction. So one extra state variable in case of unsaturated soil is the matrix suction. So now the problem is, as we have the four state variables, so the point is how to draw the four state variables in 3D axis. So one solution to this problem is that we can draw in this phase, like uh, in this four quadrants, but it is very difficult to draw in the four quadrants. So what we can do, we have to perform it in two stages. I like two stages mean, or three stages mean, we have to draw in three axes simultaneously. Like we will try to draw the state variables in QSP prime, or ESP prime, or EQP prime. So we have to take three variables, and simultaneously we have to draw in three or four different quadrants. So this was one of the solution, but still a lot of research is required to in this field, how we can draw the state variables for the unsaturated, or for the case of the unsaturated soil mechanics. Now this was the something about the state variables. Now I will tell you about the stress state variables. What are the stress state variables? These are the known material variables which are required for the characterization of a stress equilibrium conditions. The previous was the material system, but this is the stress equilibrium conditions.
Now, I told you that the effective stress for in case of or the effective stress equation in the case of saturated soil, it can be written as this one, where sigma prime is the effective stress, sigma is the total stress, and uw is the pore water pressure. And this equation was given by Terzaghi in 1936, but due to the presence of the one additional variable, that is the pore air pressure, we cannot use this equation for the case of the unsaturated soil. So in 1959, Bishop, he has suggested a tentative equation for the unsaturated soil, and that is this one, where sigma minus UA is the net stress, and UA minus UW into SR. This symbol also represents the degree of saturation, or it is a parameter which is related to the degree of saturation. So the total this equation, or the total this part of the equation, we can say it as a suction stress. So the presence of the suction stress with the net stress, it makes the equation for the unsaturated soil mechanics. Okay, so in case, so this X or is a degree of saturation, or is a parameter which is related to the degree of saturation. So higher the degree of saturation, lower is the suction stress, and the lower is the degree of saturation, higher is the suction stress. Now the um, shear strength envelope, or you can say we can, for the in case of saturated soil, the shear strength, we can draw it only using the two quadrants, or using the two variables, that is the net stress, and one is the by plotting it with the shear strength. And this C prime is the cohesion, and this line is showing the failure envelope. And we can draw by using this equation, and while if we look at this line, the lower part is showing the possible stress state. For example, if you draw the Mohr circle will touch this line, and Mohr circle will not cross this line. And the above part is the impossible stress state, which is showing that we cannot go beyond this line. So in case of saturated soil, due to the presence of only one medium, we can draw the failure envelope in 2D coordinates, or two quadrants. But due to the presence of one more parameter, which is the pore air pressure, or we can say that the suction, metric suction, we cannot use this 2D quadrant for the saturated soil. So we have to draw another axis, which is the metric suction axis, to draw the failure envelope of the unsaturated soil. So the shear stress equation in case of unsaturated soil, it can be drawn by using or by incorporating the third parameter of pore air pressure in the equation, and by using the three quadrants, that is the net stress, the metric suction, and the shear stress. So again, in this quadrant, or in this okay, when we talk about the three-dimensional surface, three quadrants, then the line will be changed to the failure plane, or you can say failure surface. So in this case, the unsaturated soil case, below the failure plane is the possible stress state, and the above the failure plane is the impossible stress state. So when we draw the Mohr column, or sorry, Mohr circle in under this failure plane, it will not cross the failure plane, and it will remain below, or it will remain within the possible stress state. So this was something about the introduction, the state variable, the stress state variable, and the introduction of the unsaturated soil mechanics. Now I will tell you something very important related to the soil mechanics, unsaturated soil mechanics. You can say is the main parameters, or the main thing which is dealing with the unsaturated soil mechanics, is the soil water characteristic curve. What is the soil water characteristic curve? It is a relation, or it is we can draw, or we it is a relation between the degree of saturation and metric suction. It has three zones. One is the saturation zone. What saturation zones represent? Also, please check the three pictures inside the zone.
Okay, let me tell you first about these three zones briefly. One is the saturation zone, one is the transition zone, and last one is the residual zone. So please check uh, the soil profile in this picture. It is showing the soil particles, the water, and the air. Air is white, water is blue, and soil particles in brown. So in the saturation zone, what the saturation zone? In the saturation zone, all the voids are completely filled with the water. Thus, the matrix suction is extremely low. Can you think, or can you tell me why the matrix suction is extremely low in this case? Because it is all the voids are filled with the water. Okay, so there is no air present inside the soil voids. So the pore air pressure is almost or negligible or is equal to zero. So due to this, or due to the absence of pore air, if you see this equation, this is the matrix suction equation. So if this UA is zero, you can see that um, the water value will be maximum. So in this case, the matrix suction will be extremely low. Then next zone is the transition zone or transition effect zone. In transition effect zone, interparticle voids are filled partially with water and partially with air. You can see in this part some voids, some part of the soil phase, it consists of the air, and some is water, and other is with the soil particles. So in this transition zone, some along with the water, air is also present. And in the last one, which is the residual zone, in residual zone, most of the particles or the most of the voids are filled with the air, and water is only coating soil particles in the form of the absorbed film. So you can say the most of the spaces between the soil particles is covered with the or is filled with the air voids. So can anybody think of, in this case, what will be the matrix section? So as the water or pore water pressure in this case is low, but pore air pressure in this case is high. So uh, the matrix section in this case will be more than all the remaining cases. And there is also one more thing which is known as air entry value. Air entry value is a point, or you can say is a no first point is how to draw the air entry value. Air entry value is a point. If you draw a straight line from this part and straight line from this part, then the point which is joining these two tangents and is the air point of the air entry value. I think I cannot draw it. Is there any tool or pointer of it? Okay, I think, let me check if I can show you. Hmm. Okay, so there, if we draw two tangents, one from here to here, and just a minute. Yes, one. Okay, actually this is a very tentative curve, so maybe I cannot draw it exactly. So by drawing these two straight with these two tangents, this point will be the air entry value, and if we drop it from here to here, then the matrix section at this point will be the air entry value of the curve. And air entry value is basically the point from which our soil is changing from the saturation zone to the transition zone. So this point is normally, now I will show you an actual soil water characteristic curve. Just a minute. Okay, then okay, this is the actual
soil water characteristic curve of an Idosaki sand, and thus data is collected from research which is performed by Gallage and Ichimura, and they have first performed some experiment and then they used a fitting curve which was presented, or which was uh, developed by Fredland and Zing in 1994. And here you can see that there are three stages. Again, same three stages. One is the saturation zone, one is the transition zone, and one is the residual zone. And here, if you draw two tangents, one is this one and other is this one, then you can see the point where these two tangents are crossing each other is the air entry value of this soil. So by drawing this, by drawing a perpendicular from this point from here to down, you can see approximately two. This is one, this is two, and this is 2.5. So 2.5 kPa is the air entry value of the Idosaki sand. So this is how we can draw the air entry value of this curve. Similarly, there is one more point which is known as residual suction. The residual suction is the transition zone between the transition effect zone and the residual zone. So similarly, if we draw two tangents, one for this curve and other for this curve, the point, I think I have not drawn correctly, but if we draw two curve, one for two tangents, sorry, one for this curve and other for this curve, then the point which is connecting these two tangents and is the point of the residual section. And by drawing from perpendicular line from the joining point to the our x-axis, we can get our residual suction. So after the residual suction, the you can say the most of the our soil is filled with the air voids, and the water inside the soil is you can say it's present in the less quantity or less amount. एक्सक्यूज मी सर, Yes, sir. सर ये यूज़ कैसे हो रही है Okay. फील्ड में? Sorry. ये इम्प्लीमेंट कैसे हो यूज रही है इसको फील्ड हम में? बेसिकली इसमें इसकी जो मेन इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो यही है कि हम ना इससे एयर एंट्री वैल्यू हम इससे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ करने का मेन मकसद ये होता है ताकि हमें पता लग जाए, जब दो बेसिक इसमें पैरामीटर्स जो हमें रिक्वायर्ड है, वो एक तो ये कि एयर एंट्री वैल्यू हमें इससे मिल जाए, और एक इसकी रेजिडुअल सक्शन का हमें सॉइल की पता लग जाए कि ये दोनों वैल्यूज कितनी है। और फिर बाद में एडवांस स्टेजेस पे ये हम इसको यूज करते हैं। अगेन वही बात है कि चूंकि हम लोग नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपनी सैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को, तो इसलिए नॉर्मली ये चीजें हम यहाँ पे यूज नहीं करते। लेकिन इसकी मेन मकसद यही है कि हमें इन दो चीजों का पता लग जाए कि एक तो इसकी एयर एंट्री वैल्यू क्या है, एक उसकी रेजिडुअल सक्शन क्या वैल्यू है। ठीक है। ओके ओके, सर। नेक्स्ट नेक्स्ट वी डॉक्टर विल सी इट। अली यस। रसूल, अगर थोड़ा सा आप इसमें ये लोग फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन आपने काम भी किया हुआ है, आई होप। जो हम स्पेशली एम्बैंकमेंट डैम एनालिसिस करते हैं, सीपेज एनालिसिस, तो उसमें जब हम सीप डब्ल्यू यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें वो SWCC कर्व के बारे में वो इनपुट मांगता है वहाँ पे, जी जो जी हमारे इंजीनियर्स जो है उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद SWCC। तो अगर उसके हवाले से थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, थैंक यू। जी सर। सर एक्चुअली ये जो CW के अंदर भी वो जो पैरामीटर्स मांगता है ना, उसमें मेनली वही दो चीजें जो उसको रिक्वायर्ड होती है ना, वो यही उससे मुहैया करनी होती है सर। उसके अलावा इसकी जो बहुत ज्यादा और आप कह लें कि प्रैक्टिकल यूज है ना, वो ऑलरेडी के वो बहुत कम नोन है। लेकिन अगर आप फ्रेडलैंड के पेपर्स को पढ़ें तो फ्रेडलैंड कहता है कि इसी SWCC की बेसिस के ऊपर आप सॉइल के वॉल्यूम को, बिहेवियर, जो डिफॉर्मेशन बिहेवियर है, उसको बहुत अच्छी तरह उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसका जो एक और यूज है ना, वो उसकी डेफॉर्मेशन मेजरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि लाजिमी बात है कि आप इसके वॉइड्स के साथ प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसके वॉइड्स के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि सॉइल की सक्शन क्या है, उसके अंदर उसके वॉइड्स कितने परसेंट उसके अंदर वॉइड मौजूद हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी उसके डिफॉर्मेशन बिहेवियर से। तो इसका नेक्स्ट जो पर्पज है, या नेक्स्ट आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन कह सकते हैं, वो इसलिए कह सकते हैं कि हमें उससे सॉइल के बिहेवियर, वॉल्यूम चेंज बिहेवियर का उससे पता चलता है। वो सॉइल ठीक है टाइप सर। इसमें मैटर करती है कि वो क्ले टाइप लाजमी सॉइल बात है? है,
हर साइट हर सॉइल टाइप के लिए डिफरेंट होगा। आप ये एक नहीं ड्रॉ कर सकते, ये हर सॉइल टाइप के लिए डिफरेंट है। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इडोसाकी सैंड के लिए है। इसकी एयर एंट्री वैल्यू तकरीबन ये आ रही है 2.5 kPa। तो अगर आप डिफरेंट सॉइल पे चले जाएंगे, जैसे एक सिल्टी सॉइल है जिसमें सिल्ट की क्वांटिटी ज्यादा है और क्ले की क्वांटिटी कम है, नॉर्मली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर एयर एंट्री वैल्यू मे बी 9 तक चली जाए। तो और अगर आप कोई और सॉइल यूज करेंगे उसके लिए एयर एंट्री वैल्यू मजीद चेंज हो जाएगी। तो ये हर सॉइल के लिए डिफरेंट है और हर सॉइल के लिए आपको सेपरेट ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं तो मेरा मतलब कहने का मकसद ये था कि जैसे अब कोई एक ग्रैनुलर सॉइल है जो, तो उसकी एयर एंट्री वैल्यू ज़्यादा होगी, और उसी तरह अगर कोहेसिव सॉइल है उसकी एयर एंट्री वैल्यू कम होगी। ये एडुसेकी की मुझे एक्चुअली समझ नहीं ना ये सैंड किस तरह की है। अब एडोसाकी सैंड जो है ना, ये बेसिकली आप फाइन सैंड इसको साफ समझ लें। क्लीन सैंड। क्लीन सैंड, हाँ। बेसिकली ये जो सारी सैंड्स है ना, ये रिसर्च पर्पज के लिए जापान में यूज होती हैं। ठीक हो गया। सर आप इसमें ऐड कुछ करना चाहेंगे? इट्स ओके डॉक्टर अली, प्लीज। चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स। इसकी एप्लीकेशन के ऊपर अगर हम बात करते हैं, बेसिकली soil mechanics, unsaturated soil mechanics, if I talk in a broad term, you can say that all the soils which are present above the water table, they are unsaturated. Okay, in a simple word. So you can say all the soil which is just beneath our ground or above the water table are the unsaturated soil. And the main application of unsaturated soil is regarding the slow stabilization. तो इसमें यही कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी जो नॉर्मली सॉइल्स हैं ना, जो हमारी एग्जिस्ट करती हैं, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, वो अनसैचुरेटेड सॉइल्स ही हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन और मेन एप्लीकेशंस भी है वो रिगार्डिंग स्लोप की स्टेबलाइजेशन के अंदर ही आ जाती है। Normally, numerous slope failures they frequently occurs in steep or the residual slopes. क्यों occur करती हैं उसकी मैं आपको थोड़ी सी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली होता ही है कि if I draw this slope, okay, this is the water table, ठीक है, ये water table है। Let's take this one, a specific thickness of, we can say maybe 5 meter or any thickness h, ठीक है। होता ये है कि ये सारे का सारा जो पार्ट है ये अनसैचुरेटेड सॉइल्स का है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सॉइल्स की जो स्ट्रेंथ है ना, वो दो चीज़ों की वजह से है, जो मैंने आपको पहले बताया है। उसमें एक नेट स्ट्रेस आ जाती है उसकी, लेट्स सपोज मैं उसको पी प्राइम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और दूसरा उसमें आ जाती है सक्शन स्ट्रेस। सक्शन स्ट्रेस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और ये मैट्रिक सक्शन, ठीक है। होता क्या है नॉर्मली कि जब रेन होती है ना, रेन वाटर होने की वजह से, रेन की वजह से जब पानी इसमें इनफिल्ट्रेट करता है, ओके, पानी इसमें इनफिल्ट्रेट करता है तो वाटर टेबल यहाँ से इंक्रीज होता है, शिफ्ट करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वाटर टेबल जब शिफ्ट करके ऊपर जाता है, नो हो ये जो मैट्रिक सेक्शन है ना, इसकी वैल्यू डिक्रीज करती चली जाती है, और यू कैन से कि टोटल स्ट्रेस सक्शन स्ट्रेस की वैल्यू जो है ना, वो डिक्रीज करती चली जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे सक्शन स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करती चली जाएगी। तो इन्फिल्ट्रेशन आप देखें, नॉर्मली जो हमारे स्लो फेलियर्स या लैंडस्लाइड फेलियर्स होते हैं, वो 90% होते भी उस केस में ही है जब रेन हो रही होती है। तो उसका मैकेनिज्म यही होता है कि जब रेन होती है तो उससे उसकी जो मैट्रिक सक्शन की वैल्यू है या सक्शन स्ट्रेस की वैल्यू है ना, वो डिक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती जाती है, और अल्टीमेटली जब उसकी बिल्कुल आप कह लेंगे मार्जिन पे पहुंच जाती है या बहुत लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है, तो अल्टीमेटली लैंडस्लाइड अकर कर जाती है या लैंडस्लाइड उसमें हो जाती है। तो इसी चीज को अगर हम वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द रेन वाटर into the slope surface contributes to the raising the groundwater table and decreasing the matrix suction. The reduction of the matrix suction in unsaturated residual soils results in a decrease in the shear strength of the soil along the potential slip failure. So जो lowest उसका
आप कह लें कि जो पोटेंशियल स्लिप फेलियर्स है ना, उसके अगेंस्ट जो हमारी स्लाइड्स है ना वो फिर फेल कर जाएंगी, लाइक स्लोप के फेलियर्स अकर कर जाएंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म है स्लोप फेलियर के अंदर। और इसी को स्टडी करने के लिए हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है कि अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स को स्टडी किया जाए, क्योंकि अगर आप इस केस में भी सैचुरेटेड सॉइल को कंसीडर करके स्टडी करेंगे तो आप इसके मैकेनिज्म को प्योरली या अच्छी तरह इसको स्टडी नहीं कर सकेंगे या इसको अच्छी तरह समझ नहीं सकेंगे। नेक्स्ट उसकी कुछ और एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं जिसमें हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उसमें एक स्टेबिलिटी ऑफ वर्टिकल और नियर वर्टिकल एक्सकवेशन है। So vertical or near vertical excavations are often used for the installation of the foundation or a pipeline. With due time, due to the water infiltration or rainfall, there will be a gradual decrease in the pore water pressure in the back slope and corresponding a loss in shear strength. So as soon as there will be a significant decrease in shear strength, this part or this again potential slip failure, it will occur. The failure along this potential slip line will occur, and your you can say excavation, it will ultimately fail. So again, the mechanism is the decrease of the shear strength, or sorry, decrease of the matrix section due to the infiltration of the water. So you can say the main part, the main role in unsaturated soil mechanics is this part, UA minus UW, which is the matrix section part. Then its next application again in the case of the lateral earth pressure, the compacted dry clay soil commonly used as a backfill material. With time, water may seep into the ground, into the soil, causing it to expand in both the vertical and horizontal direction. So what he is trying to explain here that you know that our the you can say that the structures, our retaining structure, the part beneath or behind our retaining structure, they are mainly filled with the compacted silty clays. Okay, so as soon as the water infiltrates into the this our compacted clays, they normally expand. So as soon as they expand, they exert the pressure in both horizontal and the vertical direction. As a result, they will try to push the structure or in the forward direction. So as a result, our structure also fails. So this is one more application of unsaturated soils mechanics where we should treat our soils, or we should study it related to the unsaturated soil. So it's very important that we should know how this soil behave. Do you know, did you how I can say that, आप लोगों को पता है कि सॉइल का जो बिहेवियर है वो दो डायरेक्शंस में होता है। लाइक एक तो सॉइल कंप्रेस करती है ना, नॉर्मली हम सॉइल की कंप्रेशन के ऊपर ही स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम ट्राइक्सल टेस्टिंग की बात करें और हम इसके ऊपर वर्टिकल लोड अप्लाई करते हैं, तो हमें सिर्फ ये पता है कि सॉइल हमारा स्पेसिमेन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लाइक आप कह लें कि उसका वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज करता है। कभी आप लोगों ने ये सुना है कि हम लोग सॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और सॉइल एक्सपैंड करें? हाँ ठीक जी, है, ट्राई एक्सेल एक्सपेंशन टेस्ट होता है और ट्राई एक्सेल कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट होता है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो हम लोगों को ना, और इसको हम दूसरी टर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक इसका कंप्रेसिव बिहेवियर है, ठीक है, और एक इसका डायलेटिव बिहेवियर है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारी अनसैचुरेटेड सॉइल है, अगर वो बहुत फाइन सॉइल है जिसमें क्ले के कंटेंट्स भी मौजूद हैं, काफी ज्यादा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमारी सॉइल्स कॉम्पैक्ट ही कंप्रेस ही करें। हमारी सॉइल एक्सपैंड भी कर सकती है, और आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारी सॉइल जो है ना वो उस डायलेट भी हो सकती है। तो ये जो मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये बेसिकली सॉइल डायलेशन से रिलेटेड बता रहा हूँ। सो हमें इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ना सॉइल को उसके प्योर बिहेवियर में स्टडी करें। जैसे अगर वो सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड के केस में उसको स्टडी करें, अगर वो अनसैचुरेटेड है तो उसको अनसैचुरेटेड के केस में स्टडी करें। नेक्स्ट इसकी एक और एप्लीकेशन है बेयरिंग कैपेसिटी के केस में। सो एनालिसिस अज्यूम्स दैट नेगेटिव पोर प्रेशर आर मेंटेन्ड व्हिच डेसिपेट्स
ड्यू टू वाटर इनफिल्ट्रेशन। नॉर्मली ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि चूंकि वो हम वहाँ पे नेगेटिव पोर प्रेशर्स को अज्यूम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पानी उसमें इन्फिल्ट्रेट करता जाएगा तो नेगेटिव पोर प्रेशर वैल्यू की वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो सॉइल का बिहेवियर नेगेटिव के केस में डिफरेंट होगा, पॉजिटिव के केस में डिफरेंट होगा। नेगेटिव के केस में अगेन वही बात है कि उसको अनसेचुरेटेड हम कंसिडर कर रहे हैं, और जब उसमें पानी की इन्फिल्ट्रेशन होती चली जा रही है तो वो अनसेचुरेटेड से कन्वर्ट होती जा रही है सैचुरेटेड के केस में। फाइनली कोलैप्सिंग सॉइल, there may be volume change or loss of shear strength resulting from the pore water pressure changes. Again ये वही केस है जैसे मैं आपको इसका वॉल्यूम चेंज बिहेवियर बता रहा था कि हमें इसका अकॉर्डिंगली स्टडी करना चाहिए कि सॉइल का बिहेवियर आइदर सिर्फ प्योर कंप्रेशन में होगा या प्योर एक्सपेंशन में होगा या कंप्रेशन से एक्सपेंशन में भी होगा। जैसे कभी आप लोगों ने ये वाला केस देखा है, जैसे ये दोनों केसेस तो मैंने आपको बता दिए हैं कि सॉइल या तो कंप्रेस करेगी या डायलेट करेगी, लेकिन कभी कभी आपको पता है कि ऐसा केस भी होता है कि सॉइल पहले कंप्रेस करती है और उसके बाद एक्सपैंड करती है, या कभी पहले डायलेट्स करती है और फिर सॉइल एक्सपैंड करती है। तो हमें सॉइल का बिहेवियर उसको अकॉर्डिंगली प्योर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत जरूरी है और उसको देखना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग उसकी प्योर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सही तरह समझ सकें। ओसी क्लेस मेरे ख्याल में ज्यादा करती हैं ये जो इसका बिहेवियर जो जी जी। पहले चेंज होता है फिर और उसके इसमें इसमें सिर्फ एक ये फिनोमिना नहीं है, इसमें एक और फिनोमिना भी आ जाता है। आप लोगों ने ये स्टडी किया है कि अनकम्प्रेशन सॉरी उसको मैं क्या कहना चाहिए, अनकन्फाइंड का पता है? अनकन्फाइंड फिनोमिना, अनकन्फाइंड बिहेवियर क्या हाँ होता है जी, अगर सॉइल का? ज्यादा कॉम्पैक्टेड हो तो उसको जब हम शेयर करेंगे तो वो पहले नहीं नहीं, एक्सपैंड करेंगे फिर अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड की मैं बात कर रहा हूँ, अनकन्फाइंड। जो अनकन्फाइंड टेस्ट है जिसको बगैर कन्फाइनमेंट के टेस्ट करते हैं। हाँ, लोएस्ट कन्फाइनिंग प्रेशर के ऊपर जब टेस्ट किया जाता है। हाँ जी तो सर। नॉर्मली जो हमारे पास लोअर कन्फाइनिंग प्रेशर के ऊपर जब टेस्ट करते हैं और उसकी, अच्छा आई थिंक आप लोगों को ये भी पता होगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल्स क्या होती हैं, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स क्या होती हैं। हाँ जी तो ये सारी पैरामीटर्स बहुत जरूरी हैं इसको स्टडी करने के लिए, सॉइल का स्पेशली वॉल्यूम चेंज बिहेवियर स्टडी करने के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगी, उसके ऊपर अगर हम कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। अगर हमारे पास ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगी उसके ऊपर हम उसको अगर हम अनकन्फाइंड कंडीशंस के अंदर टेस्ट कर रहे हैं उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं इनको स्टडी करने के लिए, सॉइल के बिहेवियर को, कि हम किस कंडीशन में, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो कंडीशंस ले रहे हैं वो हमारी प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो हमारा प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो उसके कितना क्लोजेस्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम लेट्स सपोज, इसमें भी मैं आपको एक मजीद बात ऐड करता जाता हूँ। जैसे अगर हम ओके लेट्स सपोज अगर मैं ये एक सॉइल की लेयर बनाता हूँ, ठीक है, तो कोई मुझे आप में से बता सकता है कि ये वाला कौन सा केस होगा, सॉइल की टॉप लेयर वाला या टॉप से लेकर 2-3 मीटर तक? ये नॉर्मल एक एनसी क्ले एनसी। नहीं नहीं, ये तो ठीक है एनसी होगा, मैं कन्फाइनिंग प्रेशर के पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि अगर हम सॉइल का एलिमेंट इधर से उठाएं, लेट्स सपोज इस पार्ट से अगर हम उठाएंगे सॉइल का एलिमेंट, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या प्रेशर कंसीडर करेंगे? जैसे अभी भी नेग्लिजिबल। कन्फाइनिंग प्रेशर, हाँ जी बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो वो जो अनकन्फाइंड केस होता है ना, वो हम बेसिकली कंसीडर करते हैं कि सॉइल की सरफेस लेयर के ऊपर, ठीक है, जो हमारी स्लोप होगी ना, सॉइल स्लोप, उसकी जो सरफेस लेयर अगर उसको हम टेस्ट करना चाहेंगे तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? उस केस में हम यहाँ पे जब हम ट्रायक्सियल टेस्टिंग करेंगे तो इसमें हम साइडों पे प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो, जीरो तो नहीं लगा सकते, उसकी रीजन को बता सकते हैं कि हम इसमें जीरो प्रेशर क्यों नहीं लगा सकते? अच्छा नहीं बता सकते। आपको पता है हमारे पास जहाँ पे एक प्लास्टिक मेम्ब्रेन होता है, मटेरियल है। वो तो एक बात है, लेकिन अभी मैं आपको टेस्टिंग के पॉइंट से पूछ रहा हूँ कि अगर हम इस पे जीरो प्रेशर क्यों नहीं लगा सकते? आप लोग पता है जब हम लोग सॉइल को टेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सॉइल को हमने मेम्ब्रेन के अंदर करना होता है ना, क्या कहते हैं, इनकेस करना होता है। तो कीप दिस मेम्ब्रेन इंटैक्ट विद द, यू कैन से, द सॉइल स्पेसिमेन, हमें उसमें थोड़ा सा प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक रीजन है कि हम इसमें थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, ओके। उसके अलावा और भी इसकी मल्टीपल रीजन है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑपरेटर्स कौन सा है, ठीक है, आप किस तरह का सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, आप लाइक पुराना, अब खैर
अनसैचुरेटेड सॉइल के केस में तो आप कन्वेंशनल ऑपरेटर्स अपना यूज नहीं कर सकते। इन एनी केस आप उसको उस कन्वेंशनल ऑपरेटर्स को मूव करना पड़ता है या इम्प्रूव करना पड़ता है टू द एडवांस ट्राइजल फ्री ऑपरेटर। स्टैंडिंग के लिए भी इसके लिए सॉरी कंफाइनिंग प्रेशर चाहिए, क्योंकि किस अगर वो फ्री स्टैंडिंग के लिए अगर वो कोहेजन नहीं होगी उसमें ग्रैनुलर से लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फ्री कन्फाइनिंग के लिए हमें चाहिए। वो उस केस में है, उसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ। उस केस में है जैसे अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये ट्राइक्सियल ऑपरेटर्स है, ठीक है, उसमें अगर हम दो दो कंडीशंस हो सकती हैं। जो आप कंडीशंस बता रहे हैं ना, ये वो वाली कंडीशंस बता रहे हैं जैसे ये हमारा अगर पेडिस्टल है, ठीक है, अगर हम अपना स्पेसिमेन पेडिस्टल के ऊपर प्रिपेयर करें ना, जैसे ये पेडिस्टल के ऊपर प्रिपेयर कर रहे हैं और बाद में हम ये वाटर को इनफिल्ट्रेट करके इसको सैचुरेट कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा कन्फाइनिंग प्रेशर इनिशियली, ताकि सॉइल इन कॉन्टेक्ट रहे। ठीक है, उसमें बेसिकली हम फिर कन्फाइनिंग प्रेशर से ज्यादा उसमें नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं। लाइक सॉइल का आप ये कह लें कि यहाँ से हम इसको ना प्रेशर को सक कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ, ताकि ये यहाँ पे जो सॉइल है ना वो हमारी इन कॉन्टेक्ट रहे उसके साथ, और साथ हमारा मेम्ब्रेन भी उसके साथ जुड़ा रहे। लेकिन नॉर्मली जो नॉन अनसैचुरेटेड सॉइल्स को टेस्ट किया जाता है, उस केस में क्या किया जाता है, उसमें स्पेसिमेन को पहले बना लिया जाता है। पहले हम कैसे बनाते हैं ये स्पेसिमेन, हम सॉरी हमारे पास एक स्पेशल मोल्ड होता है। मोल्ड के अंदर हम ऑलरेडी पहले सॉइल को लेके उसमें वाटर को ऐड करके एक प्री वाटर कंटेंट पे, लाइक फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 5%, 10%, 20%, 30%, किसी भी वाटर कंटेंट पे उसको ऑलरेडी पहले प्रिपेयर कर लेते हैं उसको सॉइल को, और उसके अंदर उसके बाद फिर हम उसको मॉड्यूल के अंदर या सैम्पलर के अंदर जाके कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, जब कॉम्पैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक जो स्पेसिमेन बनता है वो बिल्कुल एक रेडी फॉर्म में बनता है। मैं देखूंगा शायद मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में वो स्पेसिमेन की कोई टाइप अवेलेबल हो तो मैं आपको उसमें दिखा सकूं कि जब हम स्पेसिमेन बनाते हैं तो हमारा स्पेसिमेन इसमें कैसे प्रिपेयर होता है। ओके, लेट्स ओके, फिर अब मैं आपको वही जो मैंने आपको अभी बातें बताई हैं इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड उससे थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव करके बताता हूँ। उसमें आप कह सकते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ जियोटेक्निकल वर्क्स इज एसोसिएटेड विद द अनसैचुरेटेड सॉइल either as compacted fill or natural soil above the water table. However, whenever the soil slope is compacted, it is under the state of नेट कन्फाइनिंग स्ट्रेस। नेट कन्फाइनिंग स्ट्रेस वही मैं जैसे आपको बताया कि जितना सरफेस की लेयर होगी उतना उसके ऊपर कन्फाइनिंग ज्यादा होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें एरो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो कन्फाइनिंग प्रेशर है वो ऊपर से नीचे की तरफ ज्यादा हो रहा है। जैसे सरफेस लेयर है तो उस पर कन्फाइनिंग प्रेशर सबसे कम है, और जैसे जो सबसे नीचे वाली सॉइल के पार्टिकल्स होंगे उन पे कन्फाइनिंग प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। देन उसमें एक और एलिमेंट होगा मैट्रिक सक्शन का, क्योंकि हमारा वाटर टेबल जो है वो काफी ज्यादा नीचे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वाटर टेबल से ऊपर वाली जितनी भी सॉइल है वो अनसैचुरेटेड सॉइल है। तो अनसैचुरेटेड केस में जो सेकंड उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो मैट्रिक सक्शन है, और थर्ड उसमें इनिशियल शेयर स्ट्रेस है सॉइल की। नॉर्मली होगा क्या फिर, फेलियर कैसे अकर करेगा, अगेन जब रेनफॉल होगी तो हमारे पास मैट्रिक सक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, तो जैसे मैट्रिक सक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, और अल्टीमेटली सॉइल के अंदर फेलियर हो जाएगा। और सॉइल के नॉर्मली जो स्लॉप फेलियर्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा, वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो अक्कर करते हैं, या आप कह लें कि ये सबसे ज्यादा इनके जो वो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। उनमें कुछ कंट्रीज हैं जिनमें जापान है, चाइना है, पाकिस्तान है, हांगकांग है, ताइवान है। इनमें एनुअली ये स्लॉप फेलियर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी स्लॉप फेलियर बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन चूंकि लकीली वहाँ पे हमारे शायद जिन जगहों पे स्लॉप फेलियर्स होते हैं वहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोई डेवलप नहीं है, इसलिए नुकसान तो होता है लेकिन शायद वो कम नुकसान होता है, वो हाईलाइट भी ज्यादा नहीं होता। लेकिन जापान, चाइना, हांगकांग और ताइवान इन जैसे मुल्कों में तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो जब स्लॉप फेलियर्स होते हैं तो उनके नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से इन कंट्रीज में इसके ऊपर खास जो है वो इम्पोर्टेंस इसको दी जाती है, और खास इसको जो है ना देखा जाता है और स्टडी किया जाता है प्रॉपरली। इवन आपको मैं लास्ट स्लाइड में बताऊंगा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बारे में, कि वहाँ पे इसका तो सिस्टम डेवलप है कि वहाँ पे स्लोप फेलियर होने से पहले उनको पता भी चल जाता है कि इस इलाके में स्लोप फेलियर होने वाला है, तो फिर वो उन लोगों को पहले से इन्फॉर्म करके वो इलाका को खाली करवा देते हैं ताकि कोई ह्यूमन लॉस ना हो। लाजिम बात है कि वो इतने ह्यूज फेलियर को रोक तो नहीं सकते और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट वो ह्यूमन लाइफ को सेव कर देते हैं। ओके, मैं आपको एक टिपिकल स्ट्रेस पाथ दिखाता हूं जो कि अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स के केस में
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका मैकेनिज्म होता क्या है। इसमें आप देख रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे इसमें 3 क्वाड्रेंट्स है। वन इज shear stress, one is net confining pressure, and last one is matrix suction. Okay, so if we talk about this point zero, zero is the case where only the sedimentation is occurring. So you can say that this is the water table line and the sedimentation is occurring below the water table. Then this C is the point where you can see that the net confining stress is increasing. So point O has zero net confining stress, but the C has some higher value of the net confining stress. So this is showing the further sedimentation is occurring. Okay. Then the point B is a point where you can see that the metric suction is increasing. Okay. Then we can see a point which is a point D. D is the point where the shearing has started. So you can see that at this point, and you can also relate this point D with this axis Q, because we're moving upward. So you can see the point D is the point where the shearing strength of the soil has already started. So this is just the basic concept I want to show, that how this stress path is working in real field condition. Next again is a slide which is showing the mechanism of the same thing, that but here is a 2D graph, or you can say there are only two axes. One is the shear strength and one is the normal stress. Here is the failure envelope. This is point A, is a point where the soil is present in the unsaturated condition. So what happens that when some kind of infiltration or when some kind of rainfall occur, so the point A will shift from point A to B. How or why it occurs? It occurs because of the saturation. So the saturation, what shifted the point from A to B. Here the submetric suction was present, but here the whole no, or you can say that all the voids, they are filled with the water. So the soil in this state is fully saturated, and further development, or the further development of the pore water pressure, or you can say the excess pore water pressure, again move point B from B to C, and finally what happened, it occur or it touches the failure line, and as soon as this circle touches the failure line, the failure of the slope occur. So this is the mechanism, or you can say the field stress path normally, which soil element adopt during the rain induced slope failure. So in simple words, you can say what happened: an unsaturated soil, when the water infiltration occur, the saturation occur, the development of the pore water pressure occur, and finally the slope failure occur. Okay, now I will tell you about the some test which can be performed on the unsaturated soils, because how, or the point is how we can draw so many tests on the unsaturated soil. Again, it's due to presence of two parameters or two pressures. One is the pore air pressure and pore water pressure. So these are some tests which are the consolidated drain test. Consolidated drain test means in which we will perform the consolidation prior to shearing process, and then we will perform shearing in drain conditions. Drain conditions means we will keep pore air pressure controlled, we will keep pore water pressure controlled. Control mean um, we can allow both of the pressure to drain, so that and one more thing, we can measure the amount of the water. For okay, let me tell you by drawing this schematic illustration. This is the soil element. Okay, this is pore water pressure, this is pore
air pressure. So these are two things. Normally, for air pressure, we measure at the top of the top of the specimen, and for water pressure, we measure at the bottom of the specimen. So drain mean we allow both of the water to control, both of the pressure to control and to measure also. So there are three or four types of the test. One is the consolidated drain test, in which we perform the consolidation prior to the shedding process, and shedding we perform in drain conditions. Then next is the constant water content test. In constant water content test, we perform consolidation, but during the shedding process, we allow or we control the pore air pressure, but we measure the pore water pressure. And then is the consolidated undrained test, in which we perform the consolidation pure prior to the shedding, and as it is undrained, so what we do, we measure both the pore air pressure and pore water pressure. So what we do is, during the shedding shed process, there are two valves. In the next slides or in the later slide, I will again explain these things. So we have two valves here for controlling or for allowing the pore water or pore air pressure. So what we do in this consolidated undrained test, we close these valves. So what happens, neither the pore air or pore water pressure, it can come out of the specimen, and both the pressure they develop within the specimen. And what happens, we can measure both of these pressure during the shedding process easily. Then next is undrained test. What is undrained test? It is a simple test which we also perform in case of the saturated soil. So we do not perform the consolidation, we do not allow the drainage, and we just share the specimen and get the readings. Finally is the unconfined compression test. It is also a common test which we perform in case of the saturated soil. So one more thing which I would like to add in this slide is the consolidated test is a slow test, because we have to control both pore air pressure and pore water pressure, and it's a slow process. But this consolidated untrained test is a quick test, because we measure both the pore air pressure and pore water pressure, and um, we do not allow it to uh, drain out of the specimen. So this consolidated undrained test is a quick test, and this consolidated drain test is a slow test. So we have to see before performing this test that for which purpose we want to get the result, or what kind of result we can get or we want to get from our experiments. So depending on that, we will decide which test we have to perform. Next, I will tell you some apparatuses. Mm, there are some apparatuses which are used for the measurement of the strength and compressibility test, that are triaxial test, direct shear test, oedometer test, and then some apparatus which we measure for the measurement of the which we use for the measurement of the metric section, that are the tensiometer, filter paper method, pressure plate, and axis translation technique. तो ये तीन किस्म के जो ये apparatus हैं, ये तो उसकी स्ट्रेंथ और कंप्रेसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं, और बाकी ये चार जो मैंने लिखे हुए हैं इसकी मैट्रिक सेक्शन की मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं. लेकिन इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा apparatus हैं जिनको हम इनके लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक टिपिकल ट्राइजियल टेस्ट है जो कि हम सैचुरेटेड सॉइल्स के लिए यूज करते हैं. ये किस चीज के लिए आप लोगों में से मोस्टली को पता होगा कि इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, जिसमें आप देखें कि ये हमारे पास सॉइल का स्पेसिमेन है, ठीक है ना, जिसको इनकेस किया गया है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है. और दिस वन इज अ pore water pressure measurement and drainage line, and then this one is cell pressure measurement line. ये बहुत सिंपल सा apparatus है जिसमें ये सारी चीजों के बाद हम सिंपल ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है. लोड एप्लीकेशन के बाद हमें जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो हमें मिल जाती हैं, और उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करके तो आराम से स्ट्रेंथ की वैल्यूज निकाल सकते हैं. और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा ऑपरेटस अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू हम वो मेजर कर सकें कि इसमें वो एयर की क्या इंकॉर्पोरेशन है. तो इस जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ
pour water pressure, pour water pressure measurement devices, cell pressure measurement devices, and axial loading measurement devices, or you can say application of the axial load. So it's a simple triaxial test operators, but we cannot use this triaxial test operator for unsaturated soils. अगर हम इसी सेम ऑपरेटर्स को अनसैचुरेटेड सॉइल्स में यूज करना चाहें, या अगर हम अनसैचुरेटेड सॉइल्स की टेस्टिंग करना चाहें, तो उसका ऑपरेटर्स क्या होगा, उसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम या इलस्ट्रेशन वो आपको इस स्लाइड में नजर आ रही है। आल्दो ये देखने में आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि ये एडवांस ट्राइक्सियल टेस्ट ऑपरेटर्स है। आपको मैं दिखाता हूँ कि इनके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। चेकिए, जैसे नंबर 1 जो है, ये आपको ना साथ साथ नंबर्स लिखे नजर आ जाएंगे। नंबर 1 जो है ये लोड सेल है। तो लोड सेल क्या करेगा, बेसिकली इसके ये कनेक्टेड होता है हमारे पास मोटर से, ठीक है। मोटर ऊपर से लोड नीचे लगाती है, ठीक है। और आपके इसके साथ एक रोड, बेसिकली ये रोड भी जो मोटर के साथ कनेक्टेड होती है, और रोड के साथ ही ये लोड सेल बेसिकली अटैच्ड है। तो ये क्या करेगा, जितना स्पेसिमेन के ऊपर लोड एक्चुअली अप्लाई हो रहा है उसको ये डिजिटली मेजर करता है, और जो डिजिटली मेजर करने के बाद ये हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे देता रहता है। नेक्स्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है। सो दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि जैसे जैसे हमारा स्पेसिमेन, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर स्पेसिमेन, ये हमारा स्पेसिमेन है, तो जैसे जैसे इसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है, जैसे जैसे ये कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो हमें उस कंप्रेशन की वैल्यूज देता रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट हमारे पास है ये पोर वाटर प्रेशर ट्रांसड्यूसर। सो दिस वन इज आवर पोर वाटर प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर यू कैन सी कि ये हमारा ट्रांसड्यूसर जो है ना, ये कनेक्टेड है बॉटम के साथ, स्पेसिमेन की बॉटम के साथ। यू कैन सी कि ये देखिए, ये हमारा स्पेसिमेन के बॉटम के साथ कनेक्टेड है, एंड यू कैन सी हियर दैट ये हमने यहाँ पे एक वाल्व लगाया हुआ है। सो ये वो वाला वाल्व था जिसकी बारे में बात कर रहा था। और अगर आप देखें तो ये बैक पे हमारा प्रेशर, यही जो पाइपलाइन है ये कनेक्टेड है वाटर टैंक के साथ। सो इट्स मीन के अगर हमने स्पेसिमेन को सैचुरेट करना है या स्पेसिमेन के अंदर पानी को इन्फिल्ट्रेट करना है, तो हम इसको आराम से इसके साथ लगा के इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। लाइक हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर हम इस वाल्व को ओपन कर देंगे, तो यहाँ से जो पानी है वो हमारा इस स्पेसिमेन के अंदर आराम से ट्रांसफर हो सकता है। सिमिलरली अगर आप इसी पार्ट को दोबारा अगर थोड़ा सा नोटिस करें, यहाँ पे बेसिकली एक जंक्शन है, ठीक है, और इसी पार्ट से, इसी ट्रांसड्यूसर से हमारी एक लाइन ऊपर की तरफ भी जा रही है। सही है। अब इसके दो मैकेनिज्म हैं जो कि मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। इफ वी वांट के जो पानी है स्पेसिमेन के अंदर ट्रांसफर हो, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाल्व को ओपन कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। लाइक ये ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, तो वो पानी क्या करेगा, स्पेसिमेन के अंदर चला जाएगा। ओके। कॉन्ट्रेरी, अगर हम चाहेंगे कि पानी स्पेसिमेन के अंदर ना जाए, लेकिन जो पानी स्पेसिमेन के अंदर मौजूद है वो बाहर निकले और उसको हम मेजर कर सकें, तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले को क्लोज कर देंगे वाल्व को, और इसको ओपन कर देंगे। तो क्या होगा कि पानी इधर से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से इस बीकर के अंदर चला जाएगा, और जब वो इस बीकर के अंदर जाएगा तो वहां से हम आराम से इसको मेजर कर सकेंगे कि पानी बीकर के अंदर कितना आ गया है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आप फुली ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आप अनड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, या आप जो है वो कांस्टेंट वाटर कंटेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो है सेल प्रेशर ट्रांसड्यूसर। सो सेल प्रेशर ट्रांसड्यूसर बहुत सिंपल सी डिवाइस है। वो सिंपली यहाँ पे जो हमारा हम जो सेल प्रेशर अप्लाई करेंगे या जो कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई करेंगे अपना, उसको मेजर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है DPT या डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर। वो क्या करेगा, वो हमारा जो वॉल्यूम की जो हमारे स्पेसिमेन की कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन है उसको मेजर करेगा। लाइक हमारा स्पेसिमेन कितना एक्सपैंड कर रहा है या कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको मेजर करेगा। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। और फाइनली हमारा जो मेन पार्ट है वो हमारा पोर एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। सो पोर एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या करेगा,
यहाँ जो हमारे सॉइल के अंदर एयर का प्रेशर डेवलप हो रहा है या जो हम इसको एयर का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली वो इस लेवल पे जो होता है ना, उसको हम मेजर करते हैं। यहाँ हमारे जो टेस्ट अपरेटस मैंने यूज किया था उसकी थोड़ी सी लिमिटेशन थी कि वो हम सिर्फ टॉप सरफेस पे सॉइल का प्रेशर को मेजर कर सकते थे। तो इसलिए नॉर्मली हमारे केस में जो मैंने अपरेटस यूज किया था उसमें सिर्फ टॉप पे ही यूज होगा। अदरवाइज हमारा अगर कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हो हमारे पास अवेलेबल या सोफिस्टिकेटेड डिवाइस हो, तो हम हमारा सॉइल के प्रेशर, सॉइल के अंदर जो इटसेल्फ प्रेशर डेवलप हो रहा है एयर का, हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया। और फाइनली जो हमारे पास एक डिवाइस है, शायद जहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो हमारे पास ये बीकर है। तो ये बीकर क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक वेट मशीन होती है, जो भी पानी स्पेसिमेंस में से निकलता है वो इस बीकर के अंदर आ जाता है, जिसको हम फाइनली बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको भी मेजर कर सकते हैं। और इसका मैकेनिज्म क्या है कि चूंकि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं सारी की सारी, सो ईच डिवाइस, चाहे वो ट्रांसड्यूसर है, चाहे वो वेइंग मशीन है, वो हमारे पास एक स्ट्रेन डायनेमिक स्ट्रेन मीटर के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि नॉइस फिल्टर के साथ कनेक्टेड होता है, जो एडी बोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, फाइनली पीसी के साथ कनेक्टेड होता है। नॉइस फिल्टर जो है ना, उसके अंदर से नॉइस रिमूव करता है, एडी बोर्ड जो है ना वो डाटा को कन्वर्ट करता है, और पीसी जो है ना फाइनली हमें डिजिट्स में वैल्यू दे देता है, जिसको बाद में हम अपने फॉर्मूलाज के साथ यूज करके एक्सेल में ले जाते हैं। और फाइनली जो भी हमने ग्राफ प्लॉट करना होता है, चाहे वो शेयर स्ट्रेंथ का ग्राफ हो, चाहे वो वॉल्यूम डिफॉर्मेशन का ग्राफ हो, या चाहे वो पोर एयर प्रेशर की पोर वाटर प्रेशर की चेंजिंग का ग्राफ हो, या पोर एयर प्रेशर की चेंजिंग का ग्राफ हो, वो सारे के सारा डाटा हमें यहाँ से इजीली मिल जाता है। सॉरी, ओके, नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो ट्राइजल टेस्ट ऑपरेटर्स था, ये एक डबल, जो मैंने यूज किया था वो डबल सेल ट्राइजल टेस्ट ऑपरेटर्स था। डबल क्या क्या मतलब होता है कि दिस इज आवर स्पेसिमेन, देन वी हैव वन आर्सेनिक सेल, और देन दिस इज अनदर वन। मैं बताता हूँ कि इसका यूज करने का मकसद क्या था। ये हमने क्या इसका पर्पज ये है कि पहले हम इनर सेल में पानी फिल करते हैं, उसके बाद आउटर सेल में पानी फिल करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने आपको जैसे बताया है कि LCDPT ये हमारा वॉल्यूम चेंज करने के लिए यूज होता है। बेसिकली डबल सेल का मकसद मैं आपको रीजन बता देता हूँ डबल सेल यूज करने का। डबल सेल हमने इसलिए यूज किया था ताकि हम जो है ना स्पेसिमन का वॉल्यूम चेंज आराम से मेजर कर सके। इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। वैसे तो हम वॉल्यूम चेंज मेजर करने के लिए हम स्ट्रेन गेजेस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रेन गेजेस लगा दें, ठीक है। स्ट्रेन गेजेस लगाने के बाद उसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम उसको डायनामिक स्ट्रेन एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर दें, फिर नॉइस फिल्टर के साथ कनेक्ट कर दें, फिर एडी बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दें, और फाइनली हम पीसी के साथ कनेक्ट कर दें। लेकिन उसका मसला ये है कि वो जो आल्दो वो टेक्निक यूज हो सकती है, लेकिन चूंकि हमारे लैब में वो टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने उसको यूज किया डबल सेल के साथ। डबल सेल में क्या करते हैं, एक सेल में बेसिकली पानी का रेफरेंस वाटर ले लेते हैं। जैसे इस सेल में, बाहर वाले सेल में जो आपको बिगर सेल नजर आ रहा है, इसमें हमने जो पानी का लेवल था वो रेफरेंस ले लिया, लाइक उसको फिक्स कर दिया। जबकि इनर जो सेल था, इसमें हमने पानी का जो लेवल लिया ना, वो वाटर की, वो स्पेसिमेन की कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन के साथ चेंज होता रहेगा। तो होता क्या है बेसिकली, ये देखें आप, एक ये कनेक्टेड है इसके साथ, आउटर सेल के साथ, ये है इनर सेल के साथ, सही है। तो जैसे जैसे पानी का लेवल इनर सेल के अंदर चेंज होता है, वो हमारा रिकॉर्ड, जैसे जैसे पानी का लेवल इनर सेल के अंदर चेंज होता है, वो रिकॉर्ड होता रहता है इसके अंदर LCDPT के अंदर, और फाइनली उसकी वैल्यू हमें कंप्यूटर पे मिलती रहती है, और हम उसको आराम से फाइनली प्लॉट करते हैं। इसका मैकेनिज्म मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाऊंगा। ओके, तो ये जो हमारा मेन सेल है, ये पोर एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्टेड होता है, पोर सेल प्रेशर के साथ कनेक्टेड होता है, और पोर वाटर प्रेशर के साथ कनेक्टेड होता है। बेसिकली हम जो सेल प्रेशर अप्लाई करते हैं वो ऑन द टॉप ऑफ द चैम्बर अप्लाई करते हैं, लाइक टॉप सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, देन इसमें जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट मजीद पार्ट्स हैं ना, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
होंगे। जैसे सॉरी ओके, सो इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट इस ऑपरेटर्स के जो पार्ट्स हैं ना, वो ये दो हैं। इसमें जो टॉप कैप है इस ऑपरेटर्स की, इट हैज पोर एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ठीक है, और जो बॉटम पार्ट है इट हैज दिस काइंड ऑफ पेडिस्टल, ठीक है। ये पेडिस्टल जो है इसके नीचे यहाँ पे आपको एक वाइट पार्ट नजर आ रहा है, ये बेसिकली मेम्ब्रेन फिल्टर है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन फिल्टर का एक पर्पस है, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सिमिलरली ये जो आपको टॉप कैप नजर आ रही है ना, इसके नीचे भी एक पीटीएफई की शीट लगी हुई है, उसका भी एक पर्पस है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। यहाँ पे एक बताने वाली जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे एक आपको ये सोलेनाइड वेल्व नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसमें पोर एयर प्रेशर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें हम वाटर प्रेशर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। वाटर प्रेशर को कंट्रोल और मेजर करने के लिए हमें किसी सेपरेट डिवाइस की जरूरत नहीं है, लेकिन पोर एयर प्रेशर को कंट्रोल और मेजर करने के लिए हमें पोर एयर प्रेशर के साथ एक सोलेनॉइड वेल्व की भी जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जो हमने स्पेसिमेन को एक्सटर्नल एयर प्रेशर सप्लाई करना है, उसको हम कनेक्ट करते हैं सोलेनॉइड वेल्व के साथ, ठीक है, और उसको पीछे से हम रेगुलेट करते हैं एक रेगुलेटर के साथ, ठीक है। तो जब हम इसको रेगुलेटर करते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमारे सॉइल स्पेसिमेन है इसमें एयर जो है वो बाहर ना निकले, तो इस वाल्व की हमें जरूरत पड़ती है। वो बेसिकली इस वाल्व को जब हम ओपन करते हैं क्लोज करते हैं तो वो हमारा वही सेम पर्पस करता है कि हम एयर को उसकी ड्रेनेज को अलाउ कर रहे हैं या उसकी ड्रेनेज को हम क्लोज कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि सोलेनॉइड वाल्व हम यूज करते हैं पोर एयर प्रेशर की को ड्रेन करने के लिए या उसको अनड्रेन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका मैं पर्पस बताता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि हमने इसमें दो चीज़ें मजीद यूज़ की हुई हैं, जिसमें एक मेम्ब्रेन फिल्टर है और एक हमारे पास पीटीएफई शीट है या पीटीएफई मेम्ब्रेन है। तो पीटीएफई मेम्ब्रेन क्या करता है, बेसिकली इसको हम टॉप पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन पे लगाते हैं या टॉप कैप पे लगाते हैं। तो वो क्या करता है कि वो उसमें एयर को अलाउ करता है, क्योंकि हमने एयर ट्रांसड्यूसर चूंकि ऊपर वाले पार्ट में फिक्स किया हुआ है ऊपर में, तो उसमें क्या करता है कि पीटीएफ शीट जो है ना सिर्फ वो एयर को अलाउ करेगी उसमें से गुजरने के लिए, जबकि वाटर को है जो है वो रेजिस्ट करेगी। सो वाटर कैन नॉट पास थ्रू द पीटीएफ मेम्ब्रेन। जबकि हम बॉटम पे आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारा वाटर प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो बॉटम के साथ कनेक्टेड है। सो बॉटम पार्ट क्या होगा, हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर है या उसको हम सिरेमिक फिल्टर भी कहते हैं। वो सिर्फ वाटर को अलाउ करेगा कि वाटर उसमें से पास कर जाए, लेकिन वो एयर रेजिस्ट करेगा। सो ये इसका मैकेनिज्म है। साथ आप कह लें कि टॉप पार्ट पे पोर एयर प्रेशर इसमें मेजर होता है और बॉटम पार्ट पे पोर वाटर प्रेशर मेजर होता है। ओके, नेक्स्ट इसके जो कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिसमें ये लोड सेल आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोड सेल इसमें जितना लोड अप्लाई होगा उसको मेजर करता है। देन इसमें ये सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर क्या करती है, इसमें सर्वो मोटर बेसिकली आप कह लें कि ऊपर से लोड अप्लाई करने में हेल्प करेगी, ठीक है। फाइनली जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ये उसकी शेप आपको दिखाई गई है कि जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो इस किस्म के होंगे। सॉरी जस्ट अ मिनट। सॉरी। सो ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर की एक आपको इस जो ऑपरेटर्स पे मेरे ऑपरेटर्स पे लगा हुआ था प्रेशर ट्रांसड्यूसर, उसका एक एग्जांपल दिखाई गई है। सो ये इसकी जो बेसिकली हर आप यू कैन सी के हर ऑपरेटर्स या हर इंस्ट्रूमेंट की कुछ कैपेसिटी है। इस पोर वाटर प्रेशर की ट्रांसड्यूसर की कैपेसिटी जो थी वो 1 मेगा पास्कल के करीब थी। सिमिलरली इस लोड सेल की भी एक कैपेसिटी थी, लेकिन नॉर्मली जो इस
ऑपरेटर्स के ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए जाते थे वो उतनी रेंज के थे या उतनी कैपेसिटी के थे कि जो इस कैपेसिटी के लोअर लिमिट्स में रहते थे, इस कैपेसिटी को वो क्रॉस नहीं करते थे. नो आई विल टेल यू इसमें जो वॉल्यूम चेंज का मैकेनिज्म क्या था. जैसे मैंने आपको बताया कि हम जी 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 I'm sorry to interrupt. If I just want to clarify something, अगर आप पिछली स्लाइड पे जाइएगा. जी सर. ये सर इससे पिछली वाली जी. I'm sorry, the next one जहाँ पे आपने वो फिल्टर्स दिखाए हैं for poor air environment and जी जी ये वाली. अच्छा, this is quite surprising information for me to have because I was thinking that we have some mechanism where directly we measure the pore air pressure independent of the pore water pressure, and then on the other hand we measure pore water pressure independent of the pore air pressure. In reality, I haven't seen these kind of filters where I'm surprised to see that there are some kind of membranes or filters available which allow the water and stop the air or otherwise. How does really it happen? I just want to hear something more on it. Okay, sir. सर लेट मी टेल यू कि ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है ना, बेसिकली इसका एक बहुत स्पेशल मैकेनिज्म है. लाइक यू कैन से कि ये सर बेसिकली अगर आप कहें इन शॉर्ट वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स, सर ये बेसिकली ना यूज होते हैं बॉटनी की फील्ड के अंदर, ठीक है, टिश्यू कल्चर के अंदर ये यूज होते हैं. सो इनकी जो ओपनिंग साइजेस है ना वो ऐसे स्पेशलाइज्ड बनाई जाती हैं कि ये बिल्कुल सिर्फ पानी को अलाउ करते हैं, ठीक है, लेकिन सर ये एयर को अलाउ नहीं करते. लेकिन सर एट द सेम टाइम दे आल्सो हैव एन एयर एंट्री वैल्यू. ओके, सो सर यू कैन से कि जो एयर फिल्टर मैं यूज कर रहा था ना, सॉरी जो मेम्ब्रेन फिल्टर मैं यूज कर रहा था, इट हैज एन एयर एंट्री वैल्यू ऑफ 250 kPa, विच मीन्स दैट कि अगर हमारा प्रेशर जो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वाटर का प्रेशर, अगर वो 250 kPa से एक्सीड कर जाएगा तो फिर क्या होगा कि उसमें वो एयर को भी अलाउ करना स्टार्ट कर देगा, एयर की पैसेज को भी. ओके सर. सो सिमिलरली इट आल्सो हैज एन एयर एंट्री वैल्यू. सो आप ये कह लें कि ये बेसिकली बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म के मेम्ब्रेन्स हैं जो कि नॉर्मली मेडिकल की फील्ड में या बॉटनी की फील्ड में यूज होते हैं, जो कि सिर्फ वाटर को अलाउ करते हैं, जो एयर को अलाउ नहीं करते अपने अंदर पास होने से, ठीक है. एट द सेम टाइम हैव एन एयर एंट्री वैल्यू कि अगर आप उसका पानी का प्रेशर उसमें इससे ज्यादा एक्सीड करेगा तो फिर वो साथ एयर को भी अलाउ कर देंगे. And that means that they should be very expensive as well. Yes sir, exactly. क्योंकि सर जो हमने इंपोर्ट करवाए थे वो मैक्सिको से इंपोर्ट करवाए थे, और एक दफा वो खत्म हो जाता है, you have to wait till आपका नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता. So this means it's a bad news for our students in Pakistan that if really somebody is interested in unsaturated soil mechanics, along with the other expensive and sophisticated equipments, you also need these kind of very special membranes. Do you remember? I have drawn some curves of initial metric section. Do you remember? Yeah. Yes. Let me tell you, sir. Let me tell the students also. For example, this is 0 metric section. This is 5. This is 10. This is 20. This is 30. This is 40. So, sir, आपको पता है? I should say कि normally, sir, what happens होता क्या है कि जब हम किसी खास तौर पर अनसैचुरेटेड सॉइल्स में जो सबसे पहला फेज है ना वो उसकी मैट्रिक सेक्शन को मेजर करना है. और मैट्रिक सेक्शन को मेजर कैसे करते हैं? लेट मी टेल यू. सर ये जैसे आपके पास ओके, दिस इज आवर पेडिस्टल. सो व्हाट हैपेंस, आई प्रिपेयर माय स्पेसिमेन with some initial water content of 5, 10 or 15 or 20 kPa, percentage. So as soon as I put this specimen on the pedestal, it start measuring the initial metric section. Okay, so what happens normally, our graph, this is pressure values UW. Okay, so what happens, you can say, and this is time. Normally what happens, as soon as I put my specimen on the pedestal, it start measuring the metric section. So we can have a graph like this one. Okay, which means that basically it's a negative value, so that's why I'm drawing it in this way. Okay, so what happens that as soon as the operator start measuring the metric section value, with passage of time, initially it goes rapidly like this in this fashion or in this trend, but
we need to get a normalized or equilibrium stage. Okay, before the presence of this membrane filter, सर इस membrane filter की presence से पहले होता ये था कि हमें ये equilibrium stage achieve करने के लिए हमें maybe 1 month, 2 months, 3 months और 4 months लगते थे depending on the soil condition. ठीक है, तो होता ये था, इसीलिए पहले सोल मैकेनिक्स की ये खासतौर पे अनसैचुरेटेड के ऊपर टेस्टिंग नहीं होती थी, क्योंकि ये इनिशियल जो आपको इक्विलिब्रियम स्टेज है ना, इसको मिलने में आपको 3 to 4 months लगते थे एक एक्सपेरिमेंट के लिए. ठीक है, तो लेकिन जब से ये मेम्ब्रेन फिल्टर इंट्रोड्यूस हुआ है और रिसर्चर्स ने इस मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर काम किया और उसका पता चला है, अब होता क्या है कि ये जो हमें पहले 3 to 4 months के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव होती थी, अब वो ही आपको स्टेज जो है वो 20 minutes में अचीव हो जाती है. सो यू कैन इमेजिन कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस मेम्ब्रेन फिल्टर. स्पेशली सर जब मेरे अपने प्रोफेसर ने इस पे अनसैचुरेटेड पे काम किया था, तो वो बताता था कि मैंने अनसैचुरेटेड को इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि उससे पहले ये सिरेमिक डिस्क के ऊपर टेस्टिंग होती थी. क्या करते थे, सिरेमिक डिस्क होती थी, उसको पहले इनिशियली पूरी तरह सैचुरेट किया जाता था, उसको डीयर किया जाता था, उसमें से सारे एयरबॉड्स को रिमूव किए जाते थे और वो पेडिस्टल के ऊपर रख के उसके ऊपर स्पेसिमेन रख के सेम यही सारा मैकेनिज्म किया जाता था. लेकिन वो सारा आपको इक्विलिब्रियम स्टेज देने में 3 to 4 months लगा देता था. तो अगर लेकिन उस दरमियान में आपका किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाता था या ऑपरेटर्स आपका हिल जाता था या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती तो आपका सारा टेस्ट आया हो जाता था. लेकिन इस मेम्ब्रेन फिल्टर के इंट्रोडक्शन के बाद इस स्टेज में और इस इनिशियल प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई, जिसकी वजह से अब अनसैचुरेटेड की सॉइल की टेस्टिंग जो है वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट या इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रही जितनी वो पहले हुआ करती थी. थैंक यू. ओके, नेक्स्ट ये मैं सर अब आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें वॉल्यूम मेजरमेंट जो है सॉइल मैकेनिक्स, खासतौर पे अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स के केस में वॉल्यूम मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. लेकिन इसके बहुत ज़्यादा मेथड हो सकते हैं. जैसे आजकल सबसे लेटेस्ट मेथड यूज़ किया जा रहा है, वो लेटेस्ट मेथड क्या है, उसमें हम लेजर यूज़ कर रहे हैं. उसमें डिफरेंट प्लेसेस पे ऐसे आप कह लें कि प्रिज्म रख के 3 dimensional, 4 dimensional, 5 dimension उसमें प्रिज्म रख के तो ना इसके ऊपर रेज पुट की जाती हैं स्पेसिमेन के ऊपर डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायरेक्शन से. ठीक है, और फिर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और फिर हर एंगल पे, हर पॉइंट पे, हर जगह पे स्पेसिमेन की डिफॉर्मेशन को मेजर किया जाता है. लेकिन वो चूंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है. सेकंड हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसमें लेज़र की जगह यहाँ पे सिंपल ट्रांसड्यूसर लगा लें, सॉरी गेजेस लगा लें, स्ट्रेन गेजेस. ठीक है, तो उससे भी हम अपना क्या कर सकते हैं, इसमें स्पेसिमेन की वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं. तीसरा हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे एक रॉड लगा लें सर्कुलर. आप कह लें कि ये भी एक ऑपरेटस होता है. इसमें बेसिकली ऐसे सर्कुलर रॉड होती है. ठीक है, और उसके अंदर स्पेसिमेन फिल हो जाता है और उसके साथ भी हम स्पेसिमेन की डिफॉर्मेशन को मेजर कर सकते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी. तो हम लोग कैसे इसको मेजर करते थे, हम लोगों ने एक और इसका मेथड निकाला था डबल सेल का. डबल सेल का जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 सेल हैं. बाहर वाले सेल में पानी का लेवल फिक्स कर दिया जाता है, अंदर वाले सेल में पानी के लेवल को वेरी किया जाता है. वो वेरी कैसे होता है, अब आपको मैं उसको ये एनिमेशन थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये देखिए, जैसे स्पेसिमेन का वॉल्यूम एक्सपैंड करता है तो ये इनर सेल के अंदर वाटर का लेवल अप हो जाता है. ठीक है, सिमिलरली जब स्पेसिमेन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इनर सेल के अंदर पानी का लेवल डाउन हो जाता है. तो इस अप और डाउन होने की वजह से हमारे पास ये LCDPT में वैल्यू आ जाती है वाटर उसकी, वॉल्यूम ऑफ वाटर की. और वॉल्यूम ऑफ वाटर की फिर हमारे पास कुछ रिलेशंस मौजूद हैं जो कि स्टैंडर्ड देता है, स्पेशली जापानीज स्टैंडर्ड. उस रिलेशंस को यूज करते हुए हम स्पेसिमेन का वॉल्यूम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप ये कह लें शॉर्ट. सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ ये बताना बड़ा जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये चाहे आप ट्राइएक्सियल टेस्ट भी कर रहे हो ऑर्डिनरी सैचुरेटेड सॉइल्स पे या अनसैचुरेटेड सॉइल्स पे, जो स्पेसिमेन का वॉल्यूम चेंज मेजरमेंट है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल जॉब which is not done in Pakistan unfortunately. हमारे यहाँ वर्टिकल स्ट्रेन्स मायर कर दिए जाते हैं either through डायल गेजेस और LVDTs जब अवेलेबल है. लेकिन जो वॉल्यूम चेंज मेजरमेंट है
दैट इज नॉट डन एनीवेयर। तो उसमें आप ये देख रहे हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ये जो अभी डॉक्टर साहब एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, LCDPT। तो काइंडली स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा और से देखें। बड़ा ये एक इनोवेटिव और बड़ी सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू देखें सिर्फ चेंज ऑफ लेवल ऑफ वाटर उसको कोरिलेट किया जा रहा है विद द चेंज इन वॉल्यूम, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए इसका नाम भी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। डिफरेंशियल मींस इट कम्स फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर्स। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम चेंज ऑफ द स्पेसिमेन। तो ये बेसिकली पॉइंट जो है वो, जैसे आपको याद होगा कि एकदम हमने किसी से वाईवे में भी पूछा था, तो उसने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया था कि वी कैन मेजर इट विद अ वेरी ट्रेडिशनल वे जस्ट बाय पुटिंग द स्पेसिमेन इन अ टब एंड देन बाय चेकिंग इट्स एक्सपेंशन with the change in the level of water or the change in the volume of the water. But that's a very crude way. But we can introduce the same thing by putting some innovation in our triaxial test operators. Okay. One more thing, sir, we can measure the change in the volume of the specimen by, maybe you are aware of this thing, that the amount of the water drained out by the specimen. So the amount of the water drained out by the specimen, or it's picked by the specimen, if we have a beaker and placed on a weighing machine, then connected to this beaker. I don't know such kind of instruments whether we have available in Pakistan or not, but by just putting this kind of arrangement, we can also measure the amount of the water direct. We can correlate the change in the volume of the specimen with the amount of the water drained out of the specimen or drained into the specimen. मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के पास अगर एक सिंपल ट्राइजल टेस्ट ऑपरेटर्स है जिसके साथ हम एक वाटर लाइन कनेक्ट कर दें और उसके साथ हम एक बीकर ले लें जो कि एक वेट मशीन के ऊपर पड़ा हुआ हो, और हम बाद में उस पर जब लोड अप्लाई करें तो जो पानी स्पेसिमेन से निकले या जो स्पेसिमेन के अंदर जाए वो उसके इक्विवेलेंट होगा जितना हमारे पास स्पेसिमेन में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। लेकिन ये मैं वो केस बता रहा हूँ जब हमारे पास सैचुरेटेड सॉइल है या सैचुरेटेड का केस नहीं है। ठीक है सर, आप सर मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, इसी एक्सप्लेनेशन में आई वुड रिक्वेस्ट टू सम ऐड मोर इंफॉर्मेशन ऑन, चूंकि मेरी अभी तक एक चीज में कंफ्यूजन काइंड ऑफ है, आई एम ट्राइंग टू रीड मोर इनटू इट। ये एयर की कंप्रेसिबिलिटी है डॉक्टर साहब, उसको हमारा ये मैकेनिज्म सारा का सारा सेटअप किस तरीके से कैटर फॉर करता है? क्योंकि आप और एयर प्रेशर मेजर तो कर रहे हैं, उससे सक्शन भी रिलेट हो रही है, लेकिन हाउ डू वी कंट्रोल द एयर कंप्रेसिबिलिटी, बिकॉज़ एयर इटसेल्फ इज कंप्रेसिबल। तो वो कैसे? जी सर, इसलिए मैं इसमें आपको सबसे पहले सर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सर इस ऑपरेटर्स की ना एक लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन सर ये थी कि ये जो ऑपरेटर्स है ना, इससे ये क्वेश्चन में से मल्टीपल टाइम्स हुआ है, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली इस ऑपरेटर्स की एक लिमिटेशन थी, वो ये थी कि हम जो इसमें एयर प्रेशर है ना वो सिर्फ सरफेस के ऊपर मेजर कर सकते हैं। although I agree that there are many air voids maybe in between the specimen also, but we cannot measure because we do not have any sophisticated instrument that help me to measure the air voids inside the specimen. उसका सिर्फ एक ही तरीका है, बल्कि मल्टीपल तरीके भी हो सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर कोई अगर रोड्स लगा दें या हम इसके अंदर कोई मिनिएचर ट्रांसड्यूसर रख दें या कोई और ऐसा मेथड यूज कर लें, तो हमें इसके अंदर भी पता लग सकता है कि इसके अंदर एयर प्रेशर स्पेसिमेन के इनसाइड कितना है, डिफरेंट लोकेशंस पे कितना है, जैसे इधर कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है। या सर उसका नेक्स्ट जो एक जो बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड है और जिसके ऊपर रिसर्च भी की जा रही है, लेकिन ऑल्दो कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो फिर एक्स रे टेक्निक है या अल्ट्रासाउंड, आप कह लेंगे अल्ट्रासाउंड की टेक्निक है, जिसमें फिर आपको पूरा का पूरा इसका स्पेसिमेन का 3 डायमेंशनल आप कह लेंगे बिहेवियर या इनसाइड उसका पता लग जाता है कि स्पेसिमेन के अंदर कितने एवॉइड्स और किस किस लोकेशन पे मौजूद है और किस किस लोकेशन पे उसका वाटर मौजूद है। सो सर ड्यू टू सम लिमिटेशन इस ऑपरेटर्स में सिर्फ और सिर्फ टॉप के ऊपर मेजर किया जा सकता था कोर एयर को इनसाइड में। लेकिन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली, लेकिन इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए कि देखिए ये सिर्फ पोर एयर प्रेशर मेजर करने के लिए कितने सारे मेथड्स हैं और उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या क्या उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव मौजूद है। तो दो स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू मूव फॉरवर्ड इन सॉइल मैकेनिक्स एंड स्पेशली अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स के लिए, तो इनके लिए एक अच्छा एक रिसर्च आइडियाज हैं। आप पाकिस्तान की बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट सिंपल अपने ट्राइजल टेस्ट ऑपरेटर्स को इस काबिल थोड़ा सा भी कर ले कि उस पे हम जस्ट बेसिक्स भी स्टार्ट कर ले अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स की, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा
क्योंकि सर पाकिस्तान में इवन यूआईटी लाहौर जैसे इंस्टीट्यूट में या किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स पे काम नहीं हो रहा, नहीं कराया जाता। लेकिन सर अगर हम सिंपल अपने ट्राइजल टेस्ट ऑपरेटर्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि इवन अगर आप वहां से स्टार्ट कर लें कि एक आप प्रेशर ट्रांसड्यूसर को लगा के तो टॉप पे एयर को अप्लाई करके मैयर उसका मेजरमेंट भी शुरू कर दें ना, तो सर वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इनिशियल स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके अच्छा, इसमें ना एक और अपरेटस है जो कि जिसके बारे में मैंने आपको अभी पहले भी बताया है। तो नॉर्मली अनसैचुरेटेड केस में हमें ये भी साथ देखना होता है कि जो हमारा स्पेसिमेन है इसमें से पानी कितना या तो बाहर निकल रहा है या कितना पानी इसके अंदर जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू मेजर दैट वन वी हैव एन अदर ऑपरेटर्स, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लोड सेल। सो ये एक्सटर्नल लोड सेल है, ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें ये पानी का बीकर है जो कि एक वेट मशीन के ऊपर रखा हुआ है। इसके अंदर बेसिकली हम इनिशियली कुछ पानी फिल कर देते हैं, ठीक है, लाइक इस लेवल तक हम इसमें पानी फिल कर देते हैं। इस पर करंटली तो इसमें पानी का लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन करंटली इसमें पानी का लेवल यहाँ पे है, लेकिन हम नॉर्मली इसको ना हाफ तक फिल कर देते हैं। उसमें होता ही है कि ट्राइक्सिल टेस्ट जब परफॉर्म किया जाता है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता लगे कि मेरा स्पेसिमेन कितना वाटर अब्जॉर्ब करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर इन्फिल्ट्रेशन प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा कि पानी यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, वाटर लाइन ये देखिए, वाटर लाइन यहाँ से जा रही है, यहाँ से पानी मूव करेगा। ठीक है, फिर ये इसके अंदर से होता हुआ ये स्पेसिमेन के अंदर चला जाएगा जो इसको सैचुरेट करता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका रिवर्स फिनोमिना भी हो सकता है। अगर मैं चाहूँ कि पानी स्पेसिमेन के अंदर ना जाए बल्कि जितना एक्स्ट्रा पानी स्पेसिमेन के अंदर मौजूद है वो बाहर निकल जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं कोई इन्फिल्ट्रेशन प्रेशर नहीं लगाऊंगा और यहाँ पे जब मैं शेयरिंग अप्लाई करूंगा, लाइक स्पेसिमेन ये शेयर हो रहा है, तो ये जो हमारा प्रेशर पानी स्पेसिमेन के अंदर मौजूद है वो इसी वाटर लाइन से मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मूव करेगा और अल्टीमेटली ये इस बीकर के अंदर आ जाएगा। और फिर दोनों केसेस में क्या होगा, चाहे वो ऐड हो रहा है या चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो हमारे पास ये चूंकि अटैच्ड है हमारे कंप्यूटर के साथ, तो ये सारी वैल्यू हमें डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पे मिलती चली जाएगी, जो कि अल्टीमेटली मुझे पता चल जाएगा कि वाटर इज ड्रेनिंग इनटू द स्पेसिमेन और ड्रेनिंग आउट ऑफ द स्पेसिमेन। सो हम एक ग्राफ आराम से ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा यहाँ पे अब्जॉर्ब वाटर, आप उसको कह लें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल स्ट्रेन उसको कर लें या विद टाइम कर लें, तो वो हमें पता लग जाएगा कि पानी उसमें से अंदर जा रहा है या पानी उसमें बाहर निकल रहा है, डिपेंडिंग ऑन हमारे पास हम किस तरह का उसमें टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस अपरेटस की ये एक अच्छी बात थी कि इसमें सारा का सारा जो डाटा था वो सेल्फ रिकॉर्डेड था। हमें फाइनली जो डाटा मिलता था वो एक्सेल शीट की फॉर्म में मिलता था, जिसमें कुछ फार्मूलाज लगा के हम उसको इंटरपोलेट करके तो फाइनल रिजल्ट इसमें आराम से प्रिपेयर कर लेते थे। लेकिन वो जो डाटा हमारे पास आता था वो सेकंड्स की फॉर्म में आता था, हम उसको मिली सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे, मिनट्स पे भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हमने इसको मिनट्स की फॉर्म में सेव करते थे। तो हमारा जो डाटा था हम नॉर्मली 50-60,000 लाइन्स के ऊपर वो होता था, 50-60,000 लाइन्स का होता था। और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा देखना बहुत जरूरी है और साथ उसकी इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है और उसको समझना और उसको देखना कि हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नॉर्मली लास्टली मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मैंने इस पे क्या काम किया। ये बहुत बेसिक आप कह लें कि आप बहुत थोड़े से कुछ सिंपल टेस्ट रिजल्ट्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। नॉर्मली जो आपको पता है कि हम जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास एक जो मेन हमारा कंसर्न होता है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। ठीक है, और ये हमारे पास एक बहुत टिपिकल सा ग्राफ बन रहा है जिसमें ये पीक हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ आ रही है, क्यू पीक। लेकिन ये इस तरह का ग्राफ हमें सैचुरेटेड टेस्टिंग से भी मिल जाएगा, हमें अनसैचुरेटेड टेस्टिंग दोनों से मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास फील्ड, अगर हम फील्ड की बात करें ना, तो हमारे पास जो हमारी स्लोप्स होती हैं ना, वो नॉर्मली आप कह लें कि उनके ऊपर जो शेयर स्ट्रेंथ होती है ना वो 100% नहीं होती, वो 80 to 90% उनकी उसके ऊपर उस वक्त स्ट्रेंथ मौजूद होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग अनसैचुरेटेड के केस में क्या करते हैं कि हम पहले टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं ना तो उसकी हम लिमिट लगा लेते हैं कि हमारा जो टेस्ट है ना वो 100% तक उसको शेयर नहीं करेगा, उसको 80% तक शेयर करेगा। तो क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास ये क्यू है हमारा स्ट्रेस और ये स्ट्रेन।
सो क्या करेंगे हम इसको जैसे लोडिंग अप्लाई करने शुरू करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन इंक्रीज करती जाएगी और इस पॉइंट तक हमारे पास हमारा ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम इसके ऊपर लोडिंग कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, सो लोडिंग कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि अब हम इसमें एक्चुअल फील्ड कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं। तो हम इसकी 80 to 90% पीक डेविएटिव स्ट्रेस पे इसकी कांस्टेंट लोडिंग के बाद वाटर को पानी स्पेसिमेन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको पीछे बताने की कोशिश की थी कि हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं कि हम पानी स्पेसिमेन में इन्फिल्ट्रेट भी कर सकते हैं और स्पेसिमेंस में से पानी हम ड्रेन आउट भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली स्लोप्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास स्लोप है तो ये पानी इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट होगा। तो सेम इसी इन्फिल्ट्रेशन को सिमुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पानी स्पेसिमेन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेंगे। तो क्या होगा कि जब हम पानी इसमें इन्फिल्ट्रेट करेंगे बाय कीपिंग द डेविएट्रिक स्ट्रेस कांस्टेंट, तो आप देखिए कि चाहे हमने उस पर स्ट्रेस कांस्टेंट कर दी है, लेकिन स्टिल क्या हो रहा है, पानी की इन्फिल्ट्रेशन की वजह से अब उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेस कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही, अदरवाइज हमारा ग्राफ ऐसे जाता। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उसकी लिमिट लगा दी, हमने उसमें 80 से 90% तक उसको स्ट्रेस तक उसको शेयर किया, उसके बाद लोड को उसमें कांस्टेंट कर दिया और उसके बाद उसमें पानी इन्फिल्ट्रेट किया। जब पानी इन्फिल्ट्रेट किया तो हमारे पास स्ट्रेन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती रही। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम लोग कैसे उसमें स्ट्रेस को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो इसमें यही वही बात है कि ये चूंकि बहुत एडवांस ट्राइसेल टेस्ट ऑपरेटर्स था, इसमें मेरे पास ये लिमिट मौजूद थी कि मैं इसमें लोडिंग को कांस्टेंट कर देता। तो मैंने क्या करता था, मैं सॉफ्टवेयर के अंदर आप कह लें कि कुछ पैरामीटर्स या कुछ इनपुट वैल्यूज दे के हम उस वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते थे। तो ड्यू टू दैट वन मेरे पास ये एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल थी कि मैं ये कंडीशन को आराम से सिमुलेट कर सकता। तो हमने इस कंडीशन को सिमुलेट किया, ठीक है, और उस तरह की टेस्टिंग किया। मैं टेस्टिंग के एक्चुअल रिजल्ट्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सेम वही स्ट्रेस पाथ है। ठीक है, देखिए जैसे हमने क्या किया पहले, आप यहाँ से कह दें कि पहले ओके, इसके दो पार्ट से ना बेसिकली। पहले हम जीरो से लेकर किसी एक 80% स्ट्रेस तक गए, उसकी पीक डेविएटिव स्ट्रेस तक गए, और जब हमने जीरो से 80% तक उसको शेयर किया तब हमने वाल्व को क्लोज रखा, क्योंकि इस वक्त तक हम चाह रहे थे कि कोई भी पानी जो है ना वो स्पेसिमेन के अंदर इन्फिल्ट्रेट ना करे। ठीक है, ये वही छोटा सा एक इसकी आप स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन है हमारे इन्फिल्ट्रेशन प्रेशर चैम्बर की, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इसी की इलिस्ट्रेशन है वो। ठीक है, तो वाल्व क्लोज करने की वजह से आप देखें कोई किसी किस्म का इसमें वाटर ऐड नहीं हो रहा, और एट द सेम टाइम आप देखें कि इसमें शेयर की वैल्यू Q इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि इस पे शेयरिंग इस वक्त अप्लाई की जा रही है। सो जब हम और जब ऑपरेटर्स को ये पता लगा कि वो उसकी शेयरिंग 80% तक अचीव हो गई है, उस स्टेज पे जाके उसने स्ट्रेस को कांस्टेंट कर दिया। अब ये देखें, ये कांस्टेंट स्ट्रेस प्लेन आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें वाटर को पहले तो उसको हमने कांस्टेंट किया, कांस्टेंट करने के बाद हमने क्या किया कि वाल्व को ओपन कर दिया। जब वाल्व को ओपन किया तो पानी जो है ना इसके अंदर से इन्फिल्ट्रेट होकर स्पेसिमेन में जाना शुरू हो गया। तो जब ये स्पेसिमेन में गया तो उसने क्या किया, उसने इसकी मैट्रिक सेक्शन को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो मैट्रिक सेक्शन को डिक्रीज करने की वजह से देखिए आप, ये जो हमारा ग्राफ है या ये जो हमारे पास लाइन है, ये देखिए सी से डी की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, और ये देखिए हमारा जो मैट्रिक सेक्शन है ना, ये 0 से ए की तरफ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये सी से डिक्रीज की तरफ, सी से डी की तरफ ये डिक्रीज हो रहा है। तो वाटर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से क्या हुआ, हमारे मैट्रिक सेक्शन डिक्रीज हो गई। तो ये मैकेनिज्म हमने यूज किया स्लोप्स की स्टेबिलिटी को सिमुलेट करने के लिए। ओके, फाइनली ये उसके कुछ टेस्ट रिजल्ट्स हैं। अब इसके अंदर देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। अब दो पार्ट्स अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, इस लाइन के जो इस तरफ है ये पार्ट 1 है, जिसमें विदाउट वाटर इन्फिल्ट्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया गया है, और ये ग्राफ लाइन की दूसरी तरफ ये हमारे पास पार्ट सेट 2 है, जिसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया गया है। सिमिलरली ये सारे ग्राफ्स में आप ऐसे ही देख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश। जी सर, जी सर। अगर मैं थोड़ी सी स्टूडेंट्स को, चूंकि हम इस प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम भी कर चुके हैं पब्लिकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंट जो फील्ड एप्लीकेशन है वो अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। तो देखें,
ये जो टेस्ट परफॉर्म हो रहा है इसमें किसी किस्म का फेलियर जो है वो डेविएटेड टेस्ट की वजह से नहीं किया हो रहा है या लोडिंग की वजह से फेलियर नहीं हो रहा, फेलियर सिर्फ जो है वो इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो रहा है, जो कि भी डॉक्टर साहब ने मेन डिस्कशन में एक्सप्लेन भी किया है कि नेचुरल स्लोप्स में मोस्टली जो फेलियर इनिशिएट होता है ड्यूरिंग रेनफॉल वो इसी वजह से होता है कि जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो आपकी मैट्रिक्स सक्शन लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, विच इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल स्ट्रेंथ, तो वो डिक्रीज होती है और साथ ही जो है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिड्यूस हो जाता है और फेलियर हो जाता है। ये बेसिकली एग्जैक्टली उस फिनोमेना को थ्रू एक्सपेरिमेंट्स जो है वो रेप्लिकेट किया गया है। एम आई राइट डॉक्टर साहब? जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसमें मैं आपके साथ एक और बात को ऐड करता जाता हूँ, क्योंकि सर ये जो रेनफॉल सिमुलेशन है ना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है, खासतौर पर स्लोप स्टेबिलिटी की। तो सर नॉर्मली जो रिसर्चर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मॉडल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है सर, मॉडल टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो एक मॉडल मॉडल लेते हैं, उसके अंदर एक्चुअल सारी को स्लोप को बनाते हैं। ठीक है, स्लोप को बनाने के बाद उसमें क्या करते हैं, उसमें ऐसे एक रॉड लेते हैं, रॉड के अंदर स्प्रिंकलर्स लगाते हैं। ठीक है, स्प्रिंकल्स लगाने के बाद उसमें पानी को उसको स्प्रिंकल करते हैं प्रॉपर, लाइक रेनफॉल की सिमुलेशन करते हैं, प्रॉपर रेनफॉल को सिमुलेट करते हैं, 3 डायमेंशनल वो मॉडल बनाते हैं। लेकिन वो सब बहुत एक्सपेंसिव काम है, उसमें उसमें आप कह रहे हैं एफर्ट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज और बहुत सोफिस्टिकेटेड चाहिए, क्योंकि आपने स्लोप की एक्चुअल डिफॉर्मेशंस को मेजर करना है, आपने फिर उसकी कह लें कि आपने बिहेवियर को सारा मॉनिटर करना है, आपने पोर वाटर प्रेशर को मेजर करना है, आपने वो रेनफॉल की इंटेंसिटी को मेजर करना है, आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो वो एक बहुत ज़्यादा टीडियस और बहुत ज़्यादा लेंथी काम है, आल्दो कि वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी है और बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्च भी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे पास सिंपल ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑपरेटर्स मौजूद है, तो हम ये सारा काम ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑपरेटर्स के अंदर भी कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने सेम क्या किया था, उसी को सिमुलेट किया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमने सरफेस को करना है, सरफेस लेयर को करना है, तो हम उसको अनकन्फाइंड कंडीशंस में करेंगे। ठीक है, अगर हमने डीप डीप कह लें कि स्पेसिमेन को उस स्टडी करना है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, कन्फाइनिंग स्ट्रेस को ज्यादा लगा देंगे। ठीक है, तो हम हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम ट्राइएक्सियल टेस्ट के अंदर ये दोनों काम आराम से कर सके। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे मजीद? थैंक यू डॉक्टर साहब, आई एम फाइन, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी तरीका है कि हम इसकी मॉडल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मॉडल टेस्टिंग में स्लोप को बना के उसके ऊपर वाटर की इन्फिल्ट्रेशन करके, रेनफॉल को सिमुलेट करके, तो हम एक प्रॉपर स्लोप लैंडस्लाइड मैकेनिज्म या स्लोप इंस्टेबिलिटी मैकेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड तरीका हमारे पास वही मौजूद है कि हमारे पास अगर ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑपरेटर्स मौजूद है, उसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करके तो हम सेम लैंडस्लाइड का फिनोमिना या लैंडस्लाइड फेलियर का फिनोमिना यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको इसको बता रहा था, इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें पहले पार्ट्स में हमने कोई किसी किस्म का पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं किया, तो आप देखें पार्ट 1। अच्छा, इसमें दो आपको लाइन नजर आ रही है, एक ग्रीन लाइन है और एक पर्पल लाइन है। अब ये मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक स्लोप है, इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, फर्ज करें तो ये 100 जो है ना, ये आप कह लें कि इसकी डेप्थ 100 इसको रिप्रेजेंट कर रही है एक मीडियम डेप्थ, और ये 200 जो है ना एट ग्रेटर डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली आप सॉरी ठीक है, अब ये देखें, जब जिसका पार्ट 1 था ना, जिसमें हमने कोई किसी किस्म के पानी को इन्फिल्ट्रेट नहीं किया, उसमें आप देखें स्ट्रेस जो है ना वो स्ट्रेन के साथ इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेसिमेन की आप कह लें कि 80% उसकी स्ट्रेंथ आ गई। अब आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता लगा कि आपके पास ये 80% इसकी स्ट्रेंथ अचीव हो गई है। तो उसका आंसर ये है कि हमने पहले एक सिंपल टेस्ट परफॉर्म किया, जिसमें हमने सॉइल को फुली शेयर किया। ठीक है, मे बी आप कह लें कि उस केस में हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो 500 आई मैक्सिमम। तो हमें पता लग गया कि सॉइल की मैक्सिमम, इस सॉइल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ 200 kPa जो है ना वो 500 है। ठीक है, 500 kPa है। तो फिर हमने उसका 80% लिया, तो हमें पता लग गया कि ये है हमारे पास जो आएगी ना 40% के करीब इसकी 80% आएगी। तो हमने इस अपने सॉफ्टवेयर में पहले से ही फिट कर दिया कि एज सुन एज वो 400 kPa पे जब उसकी क्यू रीच करे ना, तो वो अपने लोडिंग को कांस्टेंट कर दे।
तो क्या किया उसने, जब उसने 400 पे रीच किया उसने लोडिंग को कांस्टेंट कर दिया। अब आप देखें उसके बाद ये हमारे पास लोडिंग कांस्टेंट है, किसी किस्म की कोई हमारे पास स्ट्रेस या हमारे पास लोड डेविएटिक स्ट्रेस इंक्रीज नहीं कर रही, शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं कर रही। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए कि हमारे पास एक्सियल स्ट्रेन इंक्रीज कर रही है। अब एक्सियल स्ट्रेन क्यों इंक्रीज कर रही है उसका मैं नेक्स्ट आपको पार्ट में बताता हूँ। अब ये हमारे पास जो कर्व, ये वाला हमारे पास जो ग्राफ है ना, ये मैट्रिक सेक्शन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को समझने के लिए आपको ना ये नीचे वाले ग्राफ भी साथ साथ देखने पड़ेंगे। अब ये देखिए हुआ ये है कि आप अगर पहले पार्ट में देखिए, आप देखेंगे मैट्रिक सेक्शन जो है ना वो इंक्रीज कर रही है। अब वो इंक्रीज करने की एक डिफरेंट रीजन है। एनीवेज अब भी आप यही समझें कि ये मैट्रिक सेक्शन बहुत इंक्रीज आल्दो बहुत माइनर कर रही है, तो आप इसको कांस्टेंट नहीं समझें, क्योंकि हम इधर किसी किस्म का वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे, इधर हम किसी किस्म का कोई एडिशनल काम नहीं कर रहे, हमने सिंपल उसको सिंपल शेयरिंग की है जिसको हम मोनोटोनिक शेयरिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक सेक्शन आप समझ कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ये हमारी रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंची जिसमें जो कि हमारा 80% था डेविएटिक स्ट्रेस का, तो उस पे हमने क्या किया, जब हमने लोडिंग को कांस्टेंट किया एट द सेम टाइम हमने पानी को इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया। जैसे आप ये देखिए, हमने वाल्व ओपन किया, वाल्व ओपन होने की वजह से पानी स्पेसिमेन के अंदर इन्फिल्ट्रेट होना शुरू हो गया। तो एज सुन एज जब पानी स्पेसिमेन के अंदर इन्फिल्ट्रेट होना शुरू हुआ है तो मैट्रिक सेक्शन डिक्रीज करती जा रही है। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैट्रिक सेक्शन इस ट्रेंड में डिक्रीज कर रही है। अब इस ट्रेंड में क्यों डिक्रीज कर रही है, उसकी रीजन ये है कि जो पानी इसमें जो वाटर प्रेशर इंक्रीज किया गया है ना, वो स्टेप्स में इंक्रीज किया गया है। ठीक है, लेट्स सपोज आप समझिए कि 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, सो वाटर को इस ट्रेंड में इंक्रीज किया गया। तो एज सुन एज कि वाटर को स्टेप्स में इंक्रीज किया गया, इसलिए मैट्रिक सेक्शन भी इसी तरह डिक्रीज करती जा रही है। सो ये इसकी रीजन है। और आप देखें कि यहाँ तक अगर हम अब इस ग्राफ को देखें जो कि इन्फिल्ट्रेशन और एक्सियल स्ट्रेन का ग्राफ है, तो आप देखें कि पार्ट 1 तक किसी किस्म का कोई पानी इसमें इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा। आप देखिए जीरो लेवल पे सारी ये ग्राफ है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे वाल्व क्लोज था, तो वाल्व क्लोज होने की वजह से किसी किस्म का वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं किया। ठीक है, लेकिन एज सुन एज ये जो इसमें आप कह लें कि जब वाल्व को ओपन किया गया पार्ट 2 के अंदर, पानी इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट होना शुरू हो गया। और आप देखें विद पैसेज ऑफ टाइम पानी इंक्रीज करता जा रहा है लेवल। और पानी किस तरह इसमें पानी की आप कह लें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे इंक्रीज कर रहा है, वो भी स्टेप्स में इंक्रीज कर रहा है। उसकी भी मेन रीजन ये है कि हमने जो पोर वाटर प्रेशर था, पीडब्ल्यूपी था, उसको स्टेप्स में इंक्रीज किया। सो जैसे जैसे इसका प्रेशर इंक्रीज करता गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी इंक्रीज करता गया। सिमिलरली ये उसकी वाइड रेशो का कर्व है। और फाइनली आप देखें चूंकि हम वाटर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसकी ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो जैसे जैसे वाटर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी इंक्रीज करती जा रही है। अब आप लोगों में से मुझे कोई ये बता सकता है कि पार्ट 1 जो है इस टेस्ट का, जिसमें हमने किसी किस्म का कोई वाटर इंक्रीज नहीं किया या वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं किया, उसमें भी आप देखें कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज करती जा रही है। अब ये वैसे तो बहुत बेसिक सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अगर इनिशियल आप कंटेंट नहीं, सॉरी, और कोई बताए ये क्यों इंक्रीज कर रहा है। ये बहुत बेसिक सवाल है, ये अंडर ग्रेजुएट का सवाल। आप कह लें कि अंडर ग्रेजुएट वालों को भी इस बात का पता होगा जिन्होंने सिंपल बेसिक सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी होगी। सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, यही रीजन है इसकी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में डिक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि लेकिन फिर आप देखें कि यहाँ तक बहुत ग्रेजुअल, बहुत ज्यादा माइल्ड सी इसमें इंक्रीज है, लेकिन उसके बाद चूंकि हम वाटर भी इसमें कर रहे हैं, इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो आगे देखें बड़ी रैपिड किस्म की इसमें इंक्रीज जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली फिर यही था कि ये सारा एक्सपेरिमेंट, ये तो जो बहुत ज्यादा मैंने आपको बेसिक इसके रिजल्ट्स दिखाए, लेकिन इन्हीं रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर हमने फिर इसमें इंटरप्रिटेशन की और अपने पब्लिकेशंस भी इसमें की। तो मेरे ख्याल है तकरीबन ओवरऑल में कोई 18-20 के करीब पेपर्स अनसैचुरेटेड सॉइल्स पे लिख चुका हूँ, इंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंस और जर्नल पेपर, जिसमें मैंने ये सर के साथ भी मिलकर थोड़ा सा काम किया था। और हमारे 2 पेपर्स जर्नल, अच्छे जर्नल में भी पब्लिश हुए हुए हैं अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स पे। तो अगर आप लोगों में से कोई भी अनसैचुरेटेड पे काम करने में इंटरेस्टेड है तो आप ओपनली मुझसे किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं उसके प्रैक्टिस की डेवलपमेंट से लेकर तो उसमें आप कह लें कि टेस्टिंग तक हेल्प करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे फील्ड ऑलरेडी बहुत पसंद है, मैंने इसमें ऑलमोस्ट 5 साल तक रिसर्च की हुई है।
तो अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है अनसैचुरेटेड सॉइल में एक्सपेरिमेंट्स में टेस्टिंग करने में उसमें रिसर्च करने में तो ही कैन कॉन्टेक्ट मी। फाइनली ये हमने इसकी फिर इन रिजल्ट्स की बेसिस पे फेलियर लाइन और फेलियर सरफेस ड्रॉ की। फेलियर सरफेस और फेलियर लाइन में क्या फर्क है? फेलियर सरफेस 3 डायमेंशनल है जिसमें क्यू है, डेविएटिव स्ट्रेस है, मीन इफेक्टिव स्ट्रेस है, या आप उसको इन सिंपल वर्ड्स नेट स्ट्रेस भी कह सकते हैं। मीन इफेक्टिव स्ट्रेस में कुछ और पैरामीटर्स भी शामिल हैं लेकिन वो अभी जस्ट आप उसको नेट स्ट्रेस ही समझें। और फाइनली इसमें मैट्रिक्स सेक्शन है। सो ये 3 इसमें हमारे पास एक्सिस हैं। आप देखें कि ये बेसिकली इंक्रीज कर रही है हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ फ्रॉम 0 to 80%। ठीक है, अब 80% वही 400 kPa के करीब तकरीबन। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे जब हमारे पास 80% पर आ गई हमारी क्यू मैक्सिमम, हमने लोडिंग को कांस्टेंट कर दिया, पानी को इन्फिल्ट्रेट किया। जब पानी को इन्फिल्ट्रेट किया तो आप देखें ये मैट्रिक्स सेक्शन हमारी डिक्रीज कर रही है, ये मैट्रिक्स सेक्शन हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, लेकिन मजे की बात ये है कि अब चूंकि अब आपको मैं 3D में ये एग्जैक्टली नहीं दिखा सकता, इसलिए 2D में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आप देखें ये हमारा बेसिकली फेलियर इन्वेलप की तरफ सिर्फ मूव कर रहा है, या उसको मैक्सिमम भी ये क्या करेगा, उसको टच करेगी, ये इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको बहुत पहली स्लाइड में बताया था कि बिलो द फेलियर लाइन इज पॉसिबल, सॉरी, बिलो द फेलियर लाइन ये हमारे पास पॉसिबल स्ट्रेस स्टेट है और ये इम्पॉसिबल स्ट्रेस स्टेट है। जैसे यहाँ पे भी आप इनको नजर आ रहा है, ये बिलो द सरफेस इज द पॉसिबल स्ट्रेस स्टेट एंड अबव इज इम्पॉसिबल स्ट्रेस स्टेट। सो ये हमारे पास जितने भी लाइन है या हमारे पास जो कर्व है ये हमारे पास पॉसिबल स्ट्रेस स्टेट के अंदर ही रहेंगे। सो ये उसके कुछ फाइनल किस्म के रिजल्ट्स थे। अब मैं आपको जस्ट एक कह लें कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसी जो रिसर्च जो मैंने आपको सारी बताई है इसका बहुत ज़्यादा एडवांस पार्ट है। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम ना, आप लोगों ने स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सुनी होगी, आप लोगों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम सुना होगा, और आप लोगों ने उसके अलावा क्या कहना चाहिए, एनीवेज ये अर्ली वार्निंग सिस्टम की शॉर्ट डेफिनेशन या बेसिक डेफिनेशन यही है कि हमें पहले से पता लग जाए कि क्या होने जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जापान के अंदर या चाइना के अंदर या हांगकांग के अंदर या ताइवान के अंदर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती हैं, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा एडवांस रिसर्च की है। उसमें होता ये है कि उनको ना पहले ही कुछ इंस्ट्रूमेंट वहां पे वो लगा देते हैं जिसकी बेसिस पे उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड अकर करने वाली है। तो उनको मे बी आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले पता लग जाए तो वहां पे लोगों को इंटीमेट कर देते हैं और लोग वहां से इवैक्यूएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज तो होता है लेकिन ह्यूमन डैमेज नहीं होता। तो उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, उसमें अगर आप इस फिगर को देखें, इस फिगर के अंदर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। होता ये है कि ना 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं जो कि एक एक्साइटर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, तो एक्साइटर क्या करता है, एक्साइटर वेव्स को ट्रांसमिट करता है और ये कंटिन्यूस फिनोमेना, आप ये ना समझे कि ये किसी वक्त करेगा किसी वक्त नहीं करेगा ये। हाँ, और दूसरा ये कहना चाहिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ज्यादा लाइफ लॉन्ग होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हर वक्त ना वेव्स को ट्रांसमिट करते रहती हैं। एक्साइटर उसको ट्रांसमिट करता है, वेवर रिसीवर उसको रिसीव करता है, और फिर दरमियान में मजीद हम कुछ सक्शन आप कह लें कि सेंसर्स लगा देते हैं। तो जब आप समझ लें कि जब लैंडस्लाइड यहाँ पे इनिशिएट होने लगती है ना, तो उससे पहले इन वेव्स के अंदर कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है। जब इन वेव्स के अंदर कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है तो रिसीवर उसको सही तरह कैच नहीं करता सिग्नल्स को। तो जब सही तरह कैच नहीं करता क्यों, तो आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे शायद कोई बंदा 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए बैठा होता है, नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में बने होते हैं जहाँ पे रहना आसान काम नहीं है, पहाड़ों के ऊपर होते हैं। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, इनको सनलाइट के साथ पावर दे के, बैटरी के साथ, तो इनको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इवन आप कहीं पे भी पूरे एरिया में, पूरे मुल्क में कहीं पे भी बैठे होंगे, उसका डाटा आपको कंटिन्यूसली मिलता रहता है। तो जैसे ही आपको इंटरप्टेड डाटा मिलना शुरू होता है या डाटा में कुछ इंटरप्शन आती है या डाटा खराब होना शुरू होता है, तो आपको उधर पता लग जाता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड अकर करने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। सिमिलरली इन सेंसर्स की भी जब रीडिंग चेंज होना शुरू होती है तो आपको पता लग जाता है कि इस एरिया में लैंडस्लाइड अकर करने वाली है। तो फिर क्या किया जाता है कि वहाँ के लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है, और उस इलाके को इवैक्यूएट कर दिया जाता है। तो ये एक रिसर्च है जो कि एडवांस लेवल की रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर मजीद की जा रही है। सिमिलरली अगर आप इसी सेम चीज को आप एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर करना चाहें, ये तो मैंने आपको बताया इसकी फिजिकल टेस्टिंग, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन या फिजिकल आप कहने के लिए आउट इसका,
सेम इसी चीज को अगर आप लैब के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहें तो उसमें आपको मजीद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी, जिसमें आपको ये ट्रांसमिटिंग डिवाइस, जैसे ये उसकी ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, ये उसकी रिसीविंग डिवाइस है, ठीक है। ट्रांसमिट उसको सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, फाइनली उसको वो ऑसिलोस्कोप पे कह लें कि डिस्प्ले होंगे, फाइनली वो डाटा सारा कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर वो रिकॉर्ड होगा और फाइनली हम उसकी इंटरप्रिटेशन करके उसकी बेसिस पे रिजल्ट्स को कंक्लूड कर सकेंगे। तो ये कुछ उसकी आप कह लेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये हम ट्राइजल टेस्ट के अपरेटस के अंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको स्पेसिमेन नजर आ रहा है ये हमारे पास ट्राइजल स्पेसिमेन है, जिसका वही साइज है जो कि एक ट्राइजल स्पेसिमेन के ट्राइजल टेस्ट के स्पेसिमेन का साइज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। Before I ask the students to take some questions, I would really thank Dr. Ali Murtaza Rasool for his very detailed discussion on this topic. और जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये शुरू में भी कहा और हमारे डिस्कशन में भी ये बात होती रही कि दिस इज अ टॉपिक ऑफ वेरी एडवांस्ड study in soil mechanics. So I would just like to summarize this discussion in 4 or 5 points. Correct me, Dr. Saab, if I'm missing some point or if I'm adding more into it. So in today's talk, actually what we have learned, or I can say what we can summarize in few points. We have learned about unsaturated soil mechanics, its practical applications, especially शुरू की स्लाइड्स में डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस में या आपके रिटेंशन सिस्टम डिजाइन में और इवन फाउंडेशन डिजाइन में जो आपका अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं. सो दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड. ऑफ कोर्स it was a limited talk, इसमें हम डिटेल एनालिसिस डिजाइन में नहीं जा सकते, but at least we get an idea. And the students are always open to explore more and read further into these topics. Like Dr. said, he has many publications of his own, and along with that, there are many state-of-the-art publications on unsaturated soil mechanics. So you guys can read those papers and you can really get familiar with this innovative soil mechanics technique. Second point, or I could say the second summary of today's talk was mainly on the experimental setup and advanced instrumentation. With the special focus, I would say, on you can say metric section, or you can say simply for air pressure measurement, because you guys are already familiar with how to measure pore water pressures and how to measure all other associated stresses and strains. But mostly we are not familiar with how to measure the pore air pressure, and mainly which contributes towards the suction. So that is also good to know about, especially these solenoid valves and air pressure gauges and all these systems, especially the membranes, which allow the water to infiltrate and stop air or otherwise. So that is something new for us. And then SWCC, soil water characteristic curves. That is a very important component of unsaturated soil mechanics, and that is something which has direct application to all your analysis and design tools. आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इन फ्यूचर जहां पे आप डील कर रहे हैं विद अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स, वहां पे SWCP या सॉइल वाटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के बगैर आप प्रोसीड नहीं कर सकते विद द एनालिसिस. And the fourth point was the recent I would say some of the test results done by Dr. Ali Murtaza Rasool. You have seen how the stress paths can be controlled. Actually हमारा टॉपिक जो स्ट्रेस पाथ का अभी कंटिन्यूड है, will take like an hour or so to conclude that topic. उसमें हम मजीद भी इसके अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी कि स्ट्रेस पाथ्स की एप्लीकेशंस जो है वो क्या होती है. So we have seen some stress paths for unsaturated soils, and lastly some of its innovative application towards early warning systems. जो आपको स्लोप इंस्टेबिलिटीज है जिनका मेजर कंसर्न, मेजर रीजन जो है वो loss of suction है in the upper layers of the unsaturated soils. तो उसमें आप किस तरीके से ये सारे इक्विपमेंट्स को यूटिलाइज करके आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं इंस्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स की. So really I'm grateful Dr. Ali Murtaza Rasool, and if any student have some questions, Dr. Ali is here, or we can conclude today's talk. Anyone want to ask something?
Yeah, any of our young fellows. इसमें स्पेशली एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि डॉक्टर साहब की ये प्रेजेंटेशन इसके मैंने आपके पास हैंडआउट्स आपसे शेयर किए हुए हैं. इसमें आपके पास वंडरफुल आइडियाज मौजूद हैं फॉर फ्यूचर रिसर्च पर्सपेक्टिव. तो डॉक्टर साहब इज काइंड इनफ दैट ही इज ऑलवेज ओपन टू स्टूडेंट्स, वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स. तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपनी रिसर्च एमएस लेवल पे या इन फ्यूचर, so we are always welcoming to students to help them and to guide them in this perspective. So if you don't have any questions, then we can conclude. Is there any question? सर यहाँ तो सबको सब समझ आ गया है, यहाँ किसी को Okay, and really I should thank to my students as well, क्योंकि it's kind of an extra class और students को request की गई थी कि वो इसको जरूर सुने. And I'm pretty sure the students have learned a lot of new things in this lecture. We should appreciate Dr. Ali for sharing his time and for sharing his knowledge with us. Jazakallah khair, Dr. Ali Mirza Rasool, and thank you very much to all the students. And like I said at the start, we will have another guest speaker on next Monday, inshallah, which will be Dr. Habibur Rahman talking on constitutive modeling in solid mechanics. It will be again 1.5 hour to 2 hours talk. And we will also benefit from that discussion as well, inshallah. Thank you very much, all of you. Jazakallah khair, Dr. Ali Mirza Rasool. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Thank you, sir.